Okay, so good afternoon, all of you. I hope you have revised whatever little we studied in the last class. So I'll just give a briefer. We studied about what the risk management process is, what are the steps, and then we studied about how to manage and measure those risks that we face in business or in an organization. Primarily, we studied how to measure them with the help of VAR, with the help of stress testing, with the help of scenario analysis, and all that. I hope you have revised the same. Now, let us proceed to what is expected and unexpected loss. So, when we come to expected loss is something which is a loss that arises in the normal course of your business. Say suppose if I'm a shopkeeper, अगर मेरा कोई चीज का दुकान है, मुझे पता है कि इतना लॉस तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो सकता है. So I know how to be prepared for that loss, right? Say अगर मुझे पता है कि मेरे वेयर हाउस में कभी भी से आग लग सकता है या कुछ भी रिस्क है, तो what will I do? I will primarily take an insurance to protect myself against those risks. So that is primarily called expected loss, which you can measure and which you can measure with certainty, or there is a certain probability that you can assign to those losses कि ये मुझे पता है कि अगर होगा तो मैं अपने आप को कैसे secure करूं. All right. So let us go through what is written in your text. Expected loss considers how much an entity expects to lose in the normal course of business. These losses can be calculated through statistical analysis with relative reliability over short-term horizon. So as I said, you can measure these with certainty. Okay. The EL of a portfolio can generally be calculated as a function of the probability of a risk occurring, the dollar exposure to the risk event, and the expected severity of the loss if the risk event does occur. So now what did I tell you? That you can measure these losses with the help of certain reliability and certain certainty. That इतना probability है कि ये loss हो सकता है. इसका मतलब क्या है कि आप उसको अच्छे से measure कर पा रहे हो, right? तो उसके लिए अगर मैं अब एक expected loss का formula निकालूं, तो what will the formula be? Probability मैंने बोला तो probability आएगा कि उस loss के होने का क्या probability है, right? अगेन अगर इफ आई नो कि मेरे वेयर हाउस में 10 लाख का सामान था, तो वो 10 लाख का सामान में से कितना सामान का नुकसान होगा, तो मेरे को तो कंसिडर करना होगा ना 10 लाख. सो अगेन द एक्सपोजर अमाउंट दैट आई हैव, दिस इज माय एक्सपोजर अमाउंट. एंड थर्ड विल बी कि अगर ये 10 लाख का मेरा माल है तो मेरे को कितना का नुकसान हो सकता है. से सपोज अगर ये इवेंट हो गया, वट एवर इवेंट आई एम स्पीकिंग ऑफ, यहाँ पर जैसे मैं फायर का बात कर रही हूँ, इफ फायर डज अकर व्हाट विल बी द सिवियरिटी कि मेरा कितना का नुकसान हो सकता है. ऑलराइट. सो उसको हम लोग एक परसेंटेज टर्म में लेते हैं कि से सपोज मेरा 10 लाख का माल था, उसमें से अगर फायर हुआ तो मुझे पता है मेरा 8 लाख का माल का नुकसान हो जाएगा. इसका मतलब कितना हुआ, 8/10 इज हाउ मच, 80%. So I will take 80% here. 80% is my expected severity. कि अगर कोई फायर हुआ तो उससे मुझे कितना परसेंट नुकसान हो सकता है. Say suppose if a fire occurs and we say that this man has been 80% burnt. What does this mean? It means that 80% severity है, 80% नुकसान हो चुका है, right? Is this clear? Expected loss का formula and what is expected loss? Is this clear now? Yes, ma'am. Now let us read through the example that they have given. For example, a retail business that provides credit terms on sale of goods to its customers incurs the risk of non-payment by some of the customers. The customers will tend not to pay the entire amount. If the business has been in operation for at least a few years, it could use its operating history to reasonably estimate the percentage of annual credit sales that will never be collected. What does this mean? Again, expected loss क्यों है ऐसा risk कि say suppose अगर मेरा again I am a shopkeeper, I am selling, I have an annual turnover or a revenue booking of say maybe 1 CR. अब उस 1 CR में से मैं मुझे पता है कि क्रेडिट पे भी माल देती हूँ and that forms about 70 lakh annually to me. अब उस 70 लाख एनुअली में से आई कैन अज्यूम ना कि इतना परसेंट तो मेरा हमेशा का हर साल का नुकसान होता है. 4-5 लाख का मेरा हमेशा बैड डेट होता है ना. व्हाट इज बैड डेट? आई गेव सम क्रेडिट टू समवन बट दैट कस्टमर नेवर रिटर्न मी माय मनी, राइट? सो आई कैन रीजनेबली अज्यूम कि इतना मेरा नुकसान हो सकता है. से इफ माय टर्नओवर इज ग्रोइंग आल्सो एवरी ईयर बाय 10%, आई कैन अज्यूम कि मे बी 7-8 lakhs का नेक्स्ट ईयर मेरा नुकसान होगा. सो हाउ एम आई अज्यूमिंग इट? आई एम असाइनिंग अ प्रोबेबिलिटी. I am using past history, past track record of my losses कि मेरा कितना losses हुआ है, right? You can reasonably like measure and assume and estimate these amounts, right? If the then
what is it written? The amount of the loss is therefore predictable and is treated as a regular cost of doing business, that is bad debt expense on the income statement. See, now if I know a particular class of customers are always the ones who are defaulting or who are not returning back my money, what will I do? I will charge them a higher rate. अब अगर मैं उनसे ज्यादा पैसा ले रही हूँ और वो 20% भी मुझे दे दिए और मेरा रिकवर हो गया, सो दैट इज गुड फॉर मी, राइट? सो आई विल ऑलवेज अज्यूम कि मेरा 7-8 लाख रुपया का हमेशा साल का नुकसान है ऑन अ ग्रोइंग टर्नओवर, एंड दैट इज अ नॉर्मल कोर्स एंड नॉर्मल कॉस्ट ऑफ माई बिजनेस. ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस इज ऑलवेज treated as a loss that is known to you that it will occur. मतलब obviously the exact amount can never be known, but you can reasonably manage it and reasonably assume it. It can be priced into the cost of goods directly in the case of retail business. जैसे मैंने अभी आपको बताया, in a banking context, EL could be modeled as a product of the borrower's probability of default, the bank's exposure at default, and the magnitude of the loss given default. अब मैंने जैसे बताया आपको EL का फॉर्मूला ऊपर, please copy this down also. It's in a very rough format, but please copy it down. It will help you out when you are reading the chapter yourself. So now what are they saying EL from a bank's perspective? They are saying that is equal to PD into ED into LGD. Now what is PD? As I told you, it's the probability of default. कि default होने का कितना probability है? कोई पैसा आपको बैंक का जो कस्टमर होता है, सपोज इफ आई एम टेकन अ होम लोन फ्रॉम अ बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल नॉट पे बैक? तो बैंक मेरे जैसे कस्टमर्स को एनालाइज करेगा, मेरा जितना सैलरी इनकम है उसमें पास्ट हिस्ट्री में देख के देखेगा कि मेरा कोई डिफॉल्ट हिस्ट्री है कि नहीं है, या फिर मेरे जैसे क्लास ऑफ कस्टमर्स का देखेगा कि क्या डिफॉल्ट रहा है एंड ऑल दैट. ऑलराइट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू मैंने कितने का होम लोन लिया है, होम लोन अमाउंट, और मैं अगर डिफॉल्ट करूंगी तो कितना परसेंट डिफॉल्ट कर सकती हूँ. सो दीज टू आर एस्टिमेटेड accordingly and then you come at your expected loss. Alright. Banks will often address ELs by charging a higher spread and possible shorter time horizon for riskier borrowers. So now when you're taking a home loan or when you're taking a car loan, what is your main objective? You generally want a longer term horizon कि मेरे को 10 साल, 15 साल, 20 साल का लोन मिल जाए. तो उससे क्या होता है कि आपके जो EMIs होते हैं दैट आर स्प्रेड ओवर अ ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम, तो द EMI अमाउंट एवरी मंथ गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है, आपको उतना बर्डन नहीं मतलब बेयर करना पड़ेगा एज अ कस्टमर, number one. And number two, you will always want a lower interest rate, right? So banks will always choose to work on the opposite side. So banks want a higher interest rate and banks want a shorter time horizon. Why? Because जितना जल्दी आप लोन पे कर दो तो उतना मेरे लिए बेटर है एज अ बैंक, मेरे को उतना जल्दी मेरा पैसा वापस मिल गया एंड आई अर्नड ऑल्सो ऑन दैट अमाउंट, राइट? Because longer term horizon में whether you die or whether you are not available, whether you become unemployed, how will you pay back the money, right? So that will increase my risk. So the longer term horizon it is, the greater risk from a bank's perspective that you will not be able to get your money, right? And higher interest rate आप क्यों charge करोगे as a banker so that you can earn more money. And we studied in the start of the chapter also, right? कि अगर ज्यादा risky है इसका मतलब ज्यादा return potential है. तो अगर मैं एक रिस्की इंडिविजुअल को लोन दे रही हूँ एज अ बैंक, ऑब्वियसली आई विल वांट टू अर्न अ हायर स्प्रेड, I will want to earn a higher interest rate on that amount, right? Most expected losses can be logically considered as a function of several more granular losses. Granular मतलब छोटे छोटे losses को अगर आप एक साथ देखोगे तो वो हो सकते हैं एक पूरे expected loss बन जाए. Alright, because छोटा लॉस अगर कुछ हो रहा है जैसे अनएक्सपेक्टेड है, इट हैपेंड इन योर बिजनेस, इफ यू क्यूमुलेट देन मे बी यू विल कम एंड दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर ऑफ योर एक्सपेक्टेड लॉस which can be estimated very easily in your normal course of business. All right, guys, are we clear with what is expected loss and the formula that we are going to use? You need to memorize this formula. If you want, you can note it down because इसमें sums आते हैं. And this will be repeated during your entire course of FRM, so don't worry. Is expected loss clear? I'll then move on to what is unexpected loss. Yes, ma'am. यहाँ पर confidence, it could be treated as a forecasted expense or variable cost rather than a risk. जैसे हम लोग पढ़े कि अगर आप बहुत अच्छे से उसको assume किए हो, आप बहुत accurately assume किए हो, तो आप उसको एक normal cost भी assume कर सकते हो in your normal course of business rather than a risk, because you know कि इतना तो मेरा bad debt होगा ही. जैसे मैंने bad debt वाला example बोला था कि 7-8 लाख तो मेरा नुकसान होगा ही, तो आप उसको एक normal cost भी assume करके आगे बढ़ सकते हो. Alright?
Now, what is unexpected loss? Unexpected loss is जो कभी भी कहीं भी हो जाए and that is not actually something that you can estimate. ठीक है, तो हो सकता है कि वो पास्ट में भी कभी नहीं हुआ हो ऐसा कोई इवेंट, जैसे कोविड था, तो वो तो अब बहुत एक सडन इवेंट था, राइट? नोबडी कुड एक्चुअली एस्टिमेट, नोबडी को थिंक ऑफ कि ऐसा कोई भी इवेंट आएगा तो बिजनेस में क्या नुकसान होगा. सो दैट वाज द नुकसान और द लॉस दैट हैपेंड ड्यू टू कोविड वाज एन अनएक्सपेक्टेड लॉस. ऑलराइट. So unexpected loss considers how much an entity could lose in excess of their average expected loss scenarios, something that does not occur very frequently. There is considerable challenge involved with predicting unexpected losses because they are by definition unexpected. You can just write down, bracket me if you want, COVID. For example, consider a commercial loan portfolio that is focused on loans to automotive manufacturing companies. So now what are we studying? Portfolio, just let me give you a gist of what a portfolio is. So say, suppose if I'm having a stock, like I invest in the stock market. If I have a lot of stocks, say maybe in the automobile sector, Tata and all that I'm purchasing, so that will form a portfolio of mine. I'll have a portfolio of automobile stocks. All right. Or if I'm purchasing pharma stocks, I will make a portfolio, pharma portfolio. All right. You just segregate commonality between stocks or between any other loans that you have and you make a common folder. जैसे हम लोग folder बनाते हैं ना, उसी folder को आप एक portfolio बोलते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग, तो इसमें बोला है कि एक बैंक के पास एक लोन पोर्टफोलियो जिसमें उसने लोन्स दे रखा है टू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. During an economic expansion that favors such companies because individuals have more disposable income to spend on items such as automobiles. Obviously, if your economy is expanding, people are earning more, what will they do? They will tend to buy cars. And when the economy is in a recession, when people do not have that kind of income to spend on, they curtail their spendings and hence they do not spend on luxury goods or maybe something that is there for entertainment such as cars. The lenders will realize very few, if any, loan defaults. Economic expansion है तो everyone is having the ability to pay back their EMIs, right? So उतना defaults नहीं होता है. However, अगर आप देखोगे when the economy is turning bad, अगर recessions हो रहे हैं, unemployment हो रहा है, तो what will happen? People will tend to default more on their loans. And by default we mean they will not pay back their amount. ठीक है, तो during an economic recession there is less disposable income to spend and many more loan defaults are likely to occur from borrowers. It is also likely that many of these losses will be clustered at the same time. So now again, I am not the only person who has taken a loan from the bank, right? As an automobile manufacturer, there will be thousands of other companies. And as customers, say suppose I am a manufacturer and आप लोग मेरे सब customer हो. So obviously economic recession में what will happen? You guys will not purchase cars from me. So my profit will go down, my turnover will go down. So how will I service my loan obligations? I will not be able to. तो वैसे ही मेरे जैसे और भी 10 companies है, 10 competitors, जैसे you have Kia, you have Morris Hector, all that car brands that you have Honda, Hyundai Motors, and then you have Tata. So everyone will end to default at the same time. Why? Because उन सबके profits कम हो रहे हैं, सबने लोन लिया था, सबकी ability to repay कम हो जा रहा है, right? Profit से ही तो आप पे करते हो ना, तो अगर आपका profit कम हो जा रहा है तो your ability to repay comes down. So सब एक साथ default करेंगे, right? This is an example of correlation risk. Please underline this in your book. Correlation risk when unfavorable events happen together. Correlated का क्या मतलब होता है? जब दो चीज में सिमिलैरिटी हो या कॉमनैलिटी हो. तो ऑब्वियसली अगर एक जन डिफॉल्ट कर रहे हैं, सेम रीजन की वजह से दूसरे जन भी डिफॉल्ट करे बिकॉज कार्स का बिक्री नहीं हो रहा है, प्रॉफिट इज कमिंग डाउन, एबिलिटी टू रीपे इज कमिंग डाउन एंड हेंस दोज मैन्युफैक्चरर्स आर डिफॉल्टिंग. ऑलराइट. The correlation risk drives potential losses to unexpected levels. Because losses जब इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, से मे बी बैंक ने एक एक्सपेक्टेड लॉस अपना अज्यूम किया था कि उसका मतलब से 1 करोड़ होगा और उसने एक टोटल लोन दिया था 100 करोड़ का. तो दिस इज जस्ट 1% ऑफ द अमाउंट, राइट? दिस वाज अज्यूम्ड बाय द बैंक एज ईएल. बट अगर लॉस होते होते जब अगर 30 करोड़ पहुंच जाए तो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द बैंक, राइट? तो दिस इज अनएक्सपेक्टेड लॉस. Something that you had not assumed, something that has never happened before with the bank. Because ये 1 करोड़ हो सकता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बैंक एडजस्ट भी कर पाए, प्लस ऐसा पास्ट में भी हुआ होगा कि कभी कभी छोटा मोटा लॉसेस तो बैंक के होते ही है, तो वो उनके ऑलरेडी फैक्टर्ड इन रहते हैं प्रॉफिट में कि इतना लॉसेस तो होगा ही क्योंकि उसकी वजह से उनको बिजनेस भी मिल रहा है, राइट? बट अब अगर इतना बड़ा लॉस हो जाए तो ये तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे ना, इससे तो बैंक का भी प्रॉफिट गिर जाएगा, द शेयर वैल्यू विल कम डाउन एंड ऑल दैट. सो दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड लॉस फॉर यू.
Clear? Another example of correlation risk lies with real estate loans secured by real property. Now, what are real estate loans? Home loans. Borrowers tend to default on loans, that is default rate risk. At the same time that the real properties fall, recovery rate risk, the collateral is worth less, thereby compromising the recovery rate on the funds lent to the borrowers. These two risks occurring simultaneously could also bring potential losses to unexpected levels. Now, इसमें इन लोग क्या बोल रहे हैं, कोरिलेशन रिस्क का और एक एग्जांपल बताए हैं. तो इसमें क्या होता है कि अगर आप होम लोन लिए हो एक, तो वो होम लोन में क्या होता है, आप कोलैटरल देते हो, तो होम लोन इज जनरली सिक्योर्ड बाय योर होम. ठीक है, जब तक आप ईएमआई सारा नहीं पे कर देते हो तब तक आपका होम आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं करता है बैंक. द पेपर या द प्रॉपर्टी ओनरशिप रिमेन्स विद द बैंक. All right. So अब इस केस में क्या हो रहा है कि say maybe my real estate market, my economy is not doing good, so my real estate market is also falling, and at the same time people are not having that kind of ability to repay. Why? Because the economy is not doing good. तो अब उस केस में क्या होगा कि लोग डिफॉल्ट करेंगे होम लोन्स पे, ईएमआई टाइमली नहीं पे करेंगे या ईएमआई पे करने का उनका एबिलिटी नहीं रहा, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इनकम एनीमोर, तो इनकम उन लोग ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम बैंक्स फिर क्या करेगा, अगर ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं तो कोई तो बैंक क्या करता है, कोलैटरल पे रिलाई करेगा. दे विल ट्राई टू सेल द कोलैटरल इन द मार्केट. कोलैटरल में क्या था, आपका घर था. बट अगर मार्केट में इकोनॉमी गंदा था, इकोनॉमी अभी बैड चल रहा है, मैंने जैसे बोला रिसेशन चल रहा है, और होम लोन के मतलब आपके होम के भी प्राइसेस कम चल रहे होंगे उस समय. तो अब अगर होम के भी प्राइसेस कम चल रहे हैं और मैंने एक लोन दिया था 1 करोड़ का एंड द एसेट वैल्यू वाज 1.5 CR और अभी ये एसेट वैल्यू 30 CR का हो गया, मेरे को अभी भी मेरा 70 लाख रुपया लेना है कस्टमर से, तो अब मैं 30 लाख का मतलब अगर होम मिल भी जाए तो फिर भी तो मेरा 40 लाख का नुकसान हो गया ना. ये एग्जाम्पल समझ में आया और डू आई सिंप्लीफाई दिस अगेन? Guys, quickly, please tell me yes or no. Yes, ma'am. तो अगेन आई जस्ट सिंप्लीफाई. तो मैं क्या बोली थी कि आपने 1 करोड़ का लोन दिया था अगेंस्ट अ होम ऑफ 1.5 CR. Market is not doing good, the customer does not pay back the EMI, number one. And number two, what happens when you're trying to sell the collateral, which is the home in the market, the property in the market, आपको उस प्रॉपर्टी जो 1.5 करोड़ का था उसका वैल्यू अभी खाली 30 लाख मिल रहा है और मेरा आउटस्टैंडिंग अभी भी लोन 70 लाख का है, तो मेरा तो 40 लाख का नुकसान हो गया ना एज अ बैंक. So this is called correlation risk where the customer is also defaulting and you're not able to even sell the collateral at a good value so that you can recover your amount. All right. So this will also lead to an unexpected loss. Maybe इस लोन में भी बैंक ने assume किया था कि 10 लाख का नुकसान होगा, but 10 लाख की जगह अगेन 30 लाख का नुकसान हो गया. So it's a big loss for me. This was not expected. All right. Expected and unexpected loss का difference, I hope this is clear. At the end of the entire chapter, I will share this chapter ka snippet with you, and I will try to make notes also so that it simplifies your process. Okay. Now let us study the relationship between what is risk and reward. तो मैंने जैसे बोला था, higher risk tends to give you higher reward. जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप जितना घंटा पढ़ोगे उतना हो सकता है ज्यादा मार्क्स आए. Why? Because you are trying to retain more stuff, right? So वैसे ही आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा. ऑलराइट, इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. इफ यू जस्ट वांट टू राइट अ समरी, जस्ट राइट हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड. एंड सिमिलरली अगर आप उल्टा सोचोगे तो ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा मेहनत करते हो तो आपको तो लगता है ना कि मुझे उतना ज्यादा फल मिले, राइट? तो इसका भी यही मतलब है कि अगर आप हायर रिस्क ले रहे हो, एक हायर रिस्क की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू विल ऑलवेज वांट कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिले. ऑलराइट. अगर आप म्यूचुअल फंड्स भी देखोगे, प्लीज ट्राई एंड सर्च म्यूचुअल फंड्स एंड प्लीज ऑलवेज ट्राई टू बी अपडेटेड विद द मार्केट. अगर आप पढ़ते रहोगे ना व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, इन द ग्लोबल सिनेरियो, इन द डोमेस्टिक सिनेरियो, these terms will gradually start becoming easier for you, even if you're not actually that much into the advanced phase of finance. All right, just try googling things, you will get a better understanding of things. This is how I used to study. Okay. So अब अगर आप म्यूचुअल फंड सर्च करोगे ना तो उसमें एक IRR दिखाता है. IRR इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. तो अगर आप वो देखोगे तो जितना ज्यादा आपका IRR रहेगा ना उतना ज्यादा रिस्की होता है म्यूचुअल फंड. ठीक है. तो जनरली यही बोलते हैं कि अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली यू विल वांट हायर रिटर्न. नहीं तो आप क्यों लोगे वो रिस्क? अगर मुझे कम ही रिस्क में एक सेफर इन्वेस्टमेंट में, से सपोज FD में ही मुझे उतना रिटर्न मिलने लगता तो मैं क्या कभी भी म्यूचुअल फंड में जाती? नहीं जाती. ओके.
There is a natural trade-off between risk and reward. In general, the greater the risk taken, the greater the potential reward. However, one must consider the variability of the potential reward. For the portion of the variability that is measurable as probability function could be thought of as risk, expected loss, whereas the proportion that is not measurable could be thought of as uncertainty and unexpected loss. So अब आप जो रिस्क और रिवॉर्ड का हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें जो रिस्क है उसका वेरिएबिलिटी भी तो आपको देखना पड़ेगा, प्लस जो रिटर्न है उसका भी वेरिएबिलिटी देखना पड़ेगा. इसे सपोज अगर अब रिस्क है, आप रिस्क ले रहे हो, बट उसका रिटर्न आपको दिख रहा है ऑन एन एवरेज 3 साल में मुझे दिख रहा है कि 10% है, बट वो हो सकता है कि 2 साल तक मेरे को -50 दे और 1 साल में जो लास्ट ईयर है तीसरा साल का बिफोर माई मैच्योरिटी, उसमें मुझे अच्छा रिटर्न दे दे, से 60% प्लस 110% दे दे. तो मेरा नेट अगर आप एवरेज निकालोगे तो दिस विल बी 10% रिटर्न. But does this qualify as a safer investment? No, right? Because third year में अगर कोविड जैसा कुछ सिनेरियो आ गया या कुछ बहुत उल्टा पुल्टा हो गया तो I will not be able to earn that amount, no? Then ultimately I will end up at a loss. से -50 की जगह -40% लॉस हो जाए मुझे, right? तो हमेशा वेरिएबिलिटी भी देखना चाहिए. जैसे हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, यू शुड ऑलवेज चूज स्टेबल इन्वेस्टमेंट. स्टेबल मतलब कि बहुत एक सस्टेनेबिलिटी में रिटर्न देखिए. आप एक हर क्लास में टॉप कर रहे हो या हर क्लास में आपका रैंक 7th या 8th ही आ रहा है, ठीक है. एक क्लास में आप लास्ट आ रहे हो, एक क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, वैसा नहीं, ठीक है. For example, government bonds have less credit default risk than corporate bonds. Corporate bonds are something, bonds that are issued say maybe by Reliance, by corporates, and government bonds are that are issued by the government. So what are bonds? Bonds के against में say the government is borrowing money from you, और the companies are borrowing money from you, ठीक है. तो उसमें आपको रेगुलर इंटरेस्ट इनकम मिलता है एंड बाद में आपको आपका प्रिंसिपल मिलता है, ठीक है. यू आर गिविंग अ लोन टू समवन. Therefore, government bonds will trade with lower yields than corporate bonds, all else equal. Lower yields मतलब government bonds since less risky है तो उसमें आपको less interest मिलेगा, right? तो lower yield मतलब होता है interest rate, ठीक है. However, for a given maturity, the full relationship between risk and return goes further than merely credit risk. That is, liquidity and taxation impacts may make the relationship less clear. अब हम लोग जिसमें इसमें बोल रहे हैं कि रिस्क अगर आप ज्यादा लोगे तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, तो उसमें हम लोग खाली एक क्रेडिट रिस्क को देख रहे हैं. क्रेडिट रिस्क क्या होता है? डिफॉल्ट रिस्क, कि आपको कोई पैसा वापस नहीं देगा. बट इसमें तो आपको लिक्विडिटी भी आ जाएगा ना. ऐसे सपोज अब मैं जो यहाँ प्रॉपर्टी का आपको एग्जांपल बताई थी, हो सकता है आप 30 लाख में जो इसको बेचे, हो सकता है आप 30 लाख में इसीलिए बेच पाए क्योंकि लिक्विडिटी भी नहीं था, कोई रेडी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो कोई कैसे प्रॉपर्टी खरीदेगा, राइट. तो उसको लिक्विडिटी बोलते हैं कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल इन द मार्केट यू आर नॉट एबल टू बाय बिकॉज देयर इज नो लिक्विडिटी, देयर आर नो सेलर्स और नो बायर्स इन द मार्केट. ऑलराइट, सो हेंस द प्राइसेस विल क्लैश. ओके, सो एंड टैक्सेशन वाई, बिकॉज हो सकता है कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की जो टैक्सेशन रेट्स है, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो या आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है टैक्सेशन रेट्स डिफरेंट हो सकता है द गवर्नमेंट इज फेवरिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मोर. तो इसमें आप सिंस गवर्नमेंट बॉन्ड चूज करना चाहोगे बट कॉर्पोरेट बॉन्ड टैक्सेशन एनवायरनमेंट में ज्यादा फेवरेबल है, तो यू विल ऑलवेज फेस अ ट्रेड ऑफ से मैं कौन सा चूज करूं, ठीक है. Additionally, the risk tolerances, that is ability and willingness to take on certain risks of market participants may change over time. Obviously, अब अगर say recession चल रहा है, so will you want to invest in a corporate bond during times of recession? No, because your ability to take risk will be lower, right? Number one. Number two, you will not trust the corporates. And when the economy is doing good, you're seeing that the share prices of these corporates are going up, everything is looking rosy. What will you do? And you have the ability to take risk also. बिकॉज द इकोनॉमी इज डूइंग गुड. अब शेयर मार्केट जब ऊपर जाता है तो एवरीवन ट्राइज ना कि मुझे भी इन्वेस्ट करना है बिकॉज इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग. एंड वही अगर शेयर मार्केट एकदम डूबा हुआ रहे, विल एनीबडी ट्राई टू इन्वेस्ट? नहीं ना. एक लेमन पर्सपेक्टिव से आप सोचो, जब ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है ऑब्वियसली यू विल वांट कि मुझे भी पैसा कमाना है, आई शुड एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट. एंड सेकंड, अगर स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है यू विल नॉट ट्राई टू एंटर बिकॉज हो सकता है you always make a psychological barrier in your mind that I will end up making losses. All right. When risk tolerances are high, the spread between riskless and risky bonds may narrow to an abnormally low level, which again disguises the true relationship. Again, as I told you, अगर economy अच्छा कर रहा है, you will try to invest in corporate bonds. So the people who are favoring into government bonds, मतलब equal parity हो जाएगा. से maybe अगर 100 participants है, पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स को 70 मतलब 70 people were going towards government bonds, 30 were going towards corporate bonds.
So when the economy is doing good, maybe there will be a 50-50 parity. 50 are going to government and 50 are going to corporate at the same time. All right. This is again talking about your illiquid assets. कि thinly traded या non publicly traded अगर हो तो आपको दिक्कत होगा and you will face liquidity risk. You will not be able to realize the true value of that asset. All right. से अब हम लोग जैसे एक्सपेक्टेड लॉस निकाल रहे थे ना, तो एक्सपेक्टेड लॉस निकालने के टाइम वी वर कंसिडरिंग योर प्रोबेबिलिटी, राइट? तो अब प्रोबेबिलिटी हम लोग किस चीज से हम लोग को लॉस हो सकता है वो भी देखना होगा ना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि फायर हो सकता है या कोई पैसा नहीं दिया, तो मैं अलग अलग ईएल निकालूंगी, एक्सपेक्टेड लॉस निकालूंगी मेरे पोर्टफोलियो के लिए, तो उसको मुझे एक साथ भी करके देखना चाहिए कि मेरे को क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे लॉस हो सकते हैं. फायर इज वन, कस्टमर्स पैसा नहीं देंगे दूसरा, हो सकता है मेरा कोई एम्प्लॉय थेफ्ट करके भाग जाए तो उसका एक तीसरा प्रोबेबिलिटी. सो आई शुड ट्राई टू कंसिडर द फैक्टर्स दैट विल अल्टीमेटली लीड मी टू अ लॉस, ऑलराइट, सो दैट आई कैन मेजर देम एक्यूरेटली. Some of the drivers could be the borrower's financial condition, example sales growth trends, input cost trends, or it could be external factor, example weakening global trade or unfavorable tax policy changes. Again, economic factors भी हो सकता है कि borrower वापस आपको पैसा नहीं दे, economy is doing bad, number one. Number two, उसके personal factors कि से उसका job ही चला गया तो उसका खुद का ability नहीं है to repay back the money. The potential list of loss drivers could be exhaustive, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं. The advent of artificial intelligence and machine learning. See, FRM they will always talk about AI and machine learning. Okay. Ever since I even started FRM, I started in, I think, back in 2018. उस समय से start हुआ है AI, machine learning, data science and all that. So they have a lot of emphasis on all these aspects. So ये सब aspects हर chapter में बात करेगा कि how you can use AI, how you can use data science and machine learning in order to improve your risk management process. In complex systems, example financial markets, extreme unexpected losses sometimes occur. These tail risk events can be tragic for a risk management system. Now, what is tail risk? We studied this in the last class. Can anybody help me with that, please? Please try to relate tail risk. हम लोग किस एक term में पढ़े थे? I'll just give you a hint. This is your tail risk. Value at risk. Right. So उसमें क्या पढ़े थे? Akshat, can you please revise the term for the class? Value at risk is that risk that, like for example, if we have 5% value at risk, so that means in the tails we have 5% loss, and we don't know how much loss can occur beyond that 5%, but we are sure that after that amount, value at risk starts. Yeah, so I'll just like आप starting का ठीक बोले थे, वो last line was थोड़ा गड़बड़. So आप like I think you were trying to say कि 95% of the times you are sure that you will not incur a loss which is greater than this 5%, right? Yes. So again, what is value at risk? It is a probability, say 95% probability that I will not face a loss in my portfolio greater than say an amount called 10 million. ठीक है, तो अब एक 10 मिलियन मुझे एक अमाउंट मिल गया, बट मेरा एग्जैक्ट लॉस कितना होगा वो मुझे नहीं पता. ठीक है, दिस इज VR. और इसका अगर मैं उल्टा बोलूं तो 5% चांस दैट माय लॉस विल एक्सीड 10 मिलियन. अब वो 10 मिलियन हो सकता है कि 50 मिलियन भी हो जाए, राइट? इस 5% चांस में. So does VR tell you whether it will be 50, whether it will be 12, 13, 14? No. अब अगर ये मुझे जानना है तो इसके लिए मुझे इन टेल्स में जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज, और इस एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? टेल वाले एवरेज को. इवन दिस वी स्टडीड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, राइट? ठीक है, सो लेट अस स्टडी. दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन द कोरिलेशन बिटवीन रिस्क फैक्टर्स इंक्रीजेस. अब अगर ऑब्वियसली अगर कोरिलेशन इंक्रीज होगा, प्रॉपर्टी मार्केट्स आर नॉट वर्किंग वेल, इकोनॉमी रिसेशन में है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो सब फैक्टर्स अगर इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली माय रिस्क विल इंक्रीज, राइट? माय डिफॉल्ट रिस्क इज गोइंग टू इंक्रीज. The triggers for lockstep movement between risk factors could be structural changes such as behavioral shifts, industry trends, government interventions, and new innovations. Danger arises when the frequency of tail events increases because the pace of structural uncertainty accelerates. Now, if the world war is if the world war accelerates or something like COVID again comes up, दोनों एक साथ हो रहा है, unemployment increase हो रहा है,
government instability है, government में कोई power नहीं है and all that. So everything is accumulates at one point of time. Obviously, market uncertainty increases and the risk in the market increases. All right. One of the biggest structural concerns is the potential for conflicts of interest. Conflicts of interest क्या होता है? Now let us study that. Those in the position to be most aware of the presence, probability and potential impact of various factors. Presence की risk है, probability क्या chance है कि वो risk event हो, and potential impact जो हम लोग severity पढ़े थे expected loss के formula में just in the last page कि अगर loss हुआ तो कितना ज़्यादा loss होगा. Sometimes the one who try to profit from its presence. Now, say suppose अगर I am a bank's MD or I am a bank CEO, I know कि मेरे portfolio में इतना chance हो सकता है loss का. कोई unexpected event होने वाला है जिसकी वजह से I will face a very big loss. ठीक है, but I will try to profit from that. Maybe I will sell the bank's share first, so that अगर मतलब share price गिरे बैंक का बाद में तो I can purchase it, I can make a profit. I'm not going to alert the bank about the same. So क्या होगा? I'm trying to make a profit. I'm having a conflict of interest. That despite working in the bank, I should be ideally making the bank aware that this is something that I'm seeing. This is something that I'm seeing as my experience, and I think it can impact my bank's profit. As against that, what I'm doing, I'm trying to make a profit out of that. So that is a conflict of interest. All right. This reality could be seen in the actions of rogue traders. Rogue traders, if I'm trading in the market, I'm a stock market trader, what will I do? I will try to profit from these aspects. ठीक है, एक शेयर को गिरा के बहुत गिरा के कि मतलब क्या होता है ना, जैसे there is a term कि आप क्या करते हो as a trader, what I will do, I will pick up a stock. Say I pick up a stock called ABC. अब उस स्टॉक को मैं क्या करूंगी ना, बहुत ज्यादा गिरा दूंगी. तो जो शेयर प्राइस है सपोज ऑन एन एवरेज 100 दिख रहा है ऑन अ डेली बेसिस, आपको वो आज 40 से 50 रुपया दिखने लगेगा. तो आपको क्या लगेगा, कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो इसीलिए बहुत लोग सेल कर रहे हैं और मैं ह्यूज क्वांटिटीज में सेल करूंगी उसको. ठीक है, तो आपको लगेगा कुछ गड़बड़ हुआ है इससे जल्दी, और आपके पास अगर वो शेयर है तो आप क्या करोगे कि और गिरेगा तो मुझे अभी बेच के निकल जाना चाहिए. इवन यू विल सेल. तो क्या होगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ने से प्राइसेस और गिरेंगे. राइट, डिमांड सप्लाई नॉर्मल इकोनॉमिक थिंग. तो उसकी वजह से क्या होगा, शेयर बहुत गिर गया. अब मैं क्या करूंगी कि से सपोज मैंने सारे जितने भी स्टॉक्स थे सब बेचे थे 30 रुपया में, इतने सारे, और अब मैं क्या करूंगी, आर्टिफिशियल मैंने एक सेलिंग प्रेशर ला दिया. अब उसकी वजह से जो शेयर प्राइस 10 रुपया हो गया, मैं 10 रुपया पे सारा वापस खरीद लूँ. सो आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20 per share and I sold say maybe 10,000 shares. So I made a huge profit. Right. So this is the activity of rogue traders who are just there to disrupt the market, disrupt the liquidity in the market. All right. It may also be seen from managers who conceal knowledge of a risk factor to maximize short-term stock price movements to enhance personal compensation through stock-based remuneration structures. जैसे मैंने आपको बैंक के CEO का example दिया. You can write down if you want bank CEO or MD example. All right. And these aspects you actually come across in the news also. So these happened with banks like ICICI, HDFC, PNB, SBI, everyone. Okay. The best way to combat the potential for conflicts of interest to skew risk recognition is to implement the following 3 lines of defense. Now, how do we protect ourselves against conflict of interest? Just write down how to protect against conflict of interest. Just write COI. Okay. रिस्क रिकग्निशन बाय फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज एंड डिविजन मैनेजर्स. छोटे छोटे एम्प्लॉइज को भी एम्पावर करो कि अगर उनको कुछ रिस्क दिखे तो वो बोल पाए. और रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम विद डेली ओवरसाइट. देयर शुड बी अ बोर्ड हु इज डेली ओवरसीइंग दीज एक्टिविटीज एज टू. और आप लिमिट्स भी लगा सकते हो कि अगर इतना लिमिट तक कुछ फ्लैग हो रहा है तो दैट गेट्स फ्लैग्ड ऑटोमेटिकली एंड ऑल दैट, जिससे आपका डेली रिस्क मॉनिटर हो. पीरियोडिक इंडिपेंडेंट ऑडिट्स टू एंश्योर दैट द फर्स्ट 2 line defenses are functioning properly. All right. यहाँ तक क्लियर है. Relationship between risk and reward, lines of defense, conflicts of interest, tail risk. Guys, yes, no? Yes. Now you all will do these 3 questions and quickly tell me the answers. Which of the following statements regarding risk and risk management is correct? Please go through these questions and tell me the answers.
Quickly, guys, we have a lot to cover. Ma'am, first question का is option A, I think. Option A. Yes. All right. I'll circle that. We'll check the answer. 2 ka and 3 ka. C, ma'am. 2 will be C. Okay. And 3 ka. Guys, पीछे मत देखना बुक्स पे आंसर. Please try to answer it yourselves. Ma'am, is there any other option? D. Yeah. So sorry, I missed it. क्या लग रहा है आपको? D? Option B, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Let us check the answers. So 1 ka A is correct. Risk management is more concerned with the variability of losses that could arise to unexpectedly high levels or the ones that suddenly occur that were not anticipated. Risk is not necessarily related to the size of the potential loss. For example, and always try to, whenever you are knowing the example ka answer also, na, like the question ka answer, please always go through the book ka answers because it gives you a perspective about why the second option or why the third option is not the correct answer. Okay? We'll just take 2 minutes to read, but please do that. Okay? तो आप इसका पढ़ लेना. 2 का C will be the answer. लोग C मार्क किए थे ना, right? And 3 का D. 3 का B है answer, guys. Why did we go wrong? Did you guys tell B only कि D बोला था? मैंने D मार्क किया आपके बोलने पे. I said option B. Which of the following statements is incorrect with respect to relationship between risk factors? The risk-reward trade-off is easier to consider for individual stocks than for private equity investments, obviously. Risk management conflicts of interest can be easily mitigated through stock-based compensation. Risk managers should consider granular loss drivers. And number 4, risk managers' conflicts of interest can be mitigated through periodic internal audits. This is true. Granular loss drivers consider करना चाहिए, right? Because you will ultimately know what are your loss drivers, कैसे कौन से factors से आपको loss हो रहा है. तो risk managers management conflicts of interest can be easily mitigated through stock based compensation. नहीं, क्योंकि अगर stock based compensation रहेगा तो greater conflicts of interest होगा, right? You will always try to profit from the same. ठीक है? Now we come to types of risk. So generally the risks that we face are 4 types. ठीक है? इसमें आपको 5 number of risks are given. I'll just make you note it down. And we'll just go through, I'll just tell you a brief definition of each risk and then we can go through what is written in your text. So types of risk, number 1 is your market risk. Number 2 is your credit risk. Number 3 is your liquidity risk. 4 is legal and regulatory. Reputational risk. और क्या दिया गया है? हाँ. Operational risk. ठीक है? To give you a gist, what is market risk?
कि से सपोज इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, या मैंने एक बॉन्ड खरीदा है, बॉन्ड खरीदा मतलब किसी और को लोन दिया है, मे बी गवर्नमेंट को दिया है या किसी कंपनी को दिया है, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, प्राइसेस ऑफ द स्टॉक्स चेंज, राइट, चेंज एवरी डे, एवरी सेकेंड इनफैक्ट, तो उसके वजह से मुझे लॉस हो सकता है। फिर इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो चेंज, तो उसके वजह से भी मुझे लॉस हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा चेंज हो गया प्राइस एक स्टॉक का, या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स में वेरिएबिलिटी आ गए, तो उसके वजह से चेंज हो सकता है। इकोनॉमिक कंडीशंस, ग्लोबल कंडीशंस, सबके वजह से मार्केट रिस्क होता है। प्राइसेस चेंज बिकॉज ऑफ दिस, वी कैन फेस अ लॉस। ऑलराइट, क्रेडिट रिस्क, अगेन जो हम लोग डिफॉल्ट रिस्क पढ़े थे उसकी वजह से, कि अगर मैंने किसी को एक लोन दिया या किसी चीज में इन्वेस्ट किया, वो आदमी डिफॉल्ट कर गया या वो कंपनी डिफॉल्ट कर गया, that company is not paying back the money on time, that is called credit risk. Liquidity, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी वाला पढ़े थे कि if we try to sell something in the market at times of stress, we are not able to sell it, number one, और अगर बेच भी पा रहे हैं तो हम लोग को उतना अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, ठीक है। देयर आर नॉट मच बायर्स इन द मार्केट बिकॉज द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड, या बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। से सपोज इफ आई एम हैविंग अ स्टॉक कॉल्ड एबीसी, उस स्टॉक में उतना लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है मतलब बायर्स एंड सेलर्स नहीं है, रोज ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उसमें लिक्विडिटी रिस्क होगा, आई विल नॉट बी एबल टू गेट अ गुड प्राइस फॉर माई स्टॉक। अगर आपको पता है कि मुझे ये स्टॉक को बेचना है, मेरे पास और कोई बायर ही नहीं है, तो इफ हर्ष इज ट्राइंग टू बाई द स्टॉक, ही विल गिव मी अ वेरी लो प्राइस, कि मैं तो इतना में ही खरीदूंगा, तो मुझे तो हर्ष के ऊपर ही रिलाई करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास और कोई बायर ही नहीं है। हर्ष इज एटलीस्ट ट्राइंग टू बाई द स्टॉक फ्रॉम मी, राइट। लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, लीगल कुछ भी रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं मार्केट में, टैक्सेशन इम्पैक्ट हो सकता है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैन चेंज, आरबीआई सेबी कैन कम अप विथ न्यू ट्रेडिंग पॉलिसीज एंड ऑल दैट, ठीक है। अगर आप इफ आई एम अ ह्यूज इन्वेस्टर इन ऑटोमोबाइल स्टॉक, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स को लेके कुछ नए, या कंपनीज को लेके कुछ नए रेगुलेशंस आ सकते हैं कि आपको सारे जो भी पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स है सबको स्क्रैप करना पड़ेगा, गोइंग फॉरवर्ड ऑल व्हीकल्स विल रन ऑन green fuels. So what will happen to the vehicles that I already have in my stock as a manufacturer? I will face a huge loss, right? I do not have time. Say maybe मुझे 2 महीने का टाइम दिया गया या 6 महीने का टाइम दिया गया कि आपको इसको सबको बेचना है. So I'll have to come with huge discounts on those cars of mine so that I can sell them off. नहीं तो वो तो scrap हो जाएगा मेरे लिए, right? Reputational risk, say suppose if something very bad happens in my company, I'm a huge company, I'm a listed company, people look to me, and I'm very much known in the stock market, and if some default or some very bad event happens in my company, so what will happen in such a case? Say Air India crash hi jo hua, so that had an impact overall on Tata, right? Because Tata is operating that company right now. So reputational risk है, operational risk again, losses or risk that you face maybe because of your computer systems, because of your employees, कोई employee आपका system hack कर लिया, या computer systems आपके hack हो गए across the organization, ठीक है। Now sometimes what we face global outrages in the terms of WhatsApp and Facebook, तो वो बंद हो जाते हैं, तो क्या होता है, अगर आप कभी देखोगे ऑनलाइन, आप सर्च करना, if WhatsApp server is down, the stock price of Facebook comes down very drastically. All right. So these are operational risks wherein your share price can be impacted, or you may face a huge loss because of your systems not working properly. And by systems, we mean employees, we mean your computers, we mean other aspects also. Okay. There may be some flaws in your production processes, fire ho gaya ya kuch ho gaya. All these come under your operational risk. All right. एक proper gist मिल गया. What are these risks? किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लो, then we'll go through the text. Guys, any doubt? Yes, no, please. No, ma'am. ये सब clear है, right? These are your type of risks that we're going to study. If you want, एक बार आप note down कर लो. Note down करना है. Just मतलब कुछ है नहीं इसमें वैसे भी. I'll just wait 2 minutes. अगर किसी को note down करना है तो कर लो. चलिए, let's proceed.
Market risk refers to the fact that market prices and rates are continually in a state of change. The key aspects, the key subtypes of market risk के भी subtypes है, जैसे मैंने आपको interest rate बताया था, equity price, foreign exchange and commodity price, ठीक है? The key to mitigating these risks is to understand the relationship between positions. As these relationships change, risk management methods need to change as well. Interest rate risk refers to uncertainty flowing from changes in interest rate levels. If market interest rates rise, the value of bonds will decrease. अब ये क्यों होगा? Can anyone tell me why will your bonds का prices decrease? Bonds price क्या होता है जिसमें आप bond को खरीद सकते हो? Bond price क्यों decrease होगा when your interest rate is going to rise? Ma'am, if the market is giving more interest, then the bonds price should go up, na? No, so I'll tell you. जनरली क्या होता है ना, अगर आप एक स्टॉक को या बॉन्ड को वैल्यू करते हो ना, तो वो एक पीवी निकलता है, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग. सो प्रेजेंट वैल्यू में आप क्या करते हो, जितने भी आपके कैश फ्लोज होते हैं ना, फ्यूचर कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट बैक करते हो अभी के टाइम पे, ठीक है? अभी का टाइम मतलब हो गया आज का टाइम, विच इज 25 जुलाई, लाइक 10th जुलाई 25 को आप लाओगे. तो एक सपोज से बॉन्ड है, आई जस्ट शो यू. एक बॉन्ड है, तो उसमें 100 रुपया मिलेगा, ठीक है? एट एंड ऑफ ईयर से 5, ठीक है? आप उस बॉन्ड को आज खरीद रहे हो से मे बी एट 80, आपको साल के 5 साल के एंड में उसमें 100 रुपया मिलेगा, ठीक है? तो एंड बीच बीच में इंटरेस्ट मिलेगा. सो नाउ इंटरेस्ट रेट दैट यू हैव ऑन दिस बॉन्ड से मे बी 7%. तो आपको 7% से एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट 100, ठीक है? तो अब इसका आप वैल्यू कैसे, अब ये 80 कैसे निकला? आज का जो प्राइस है 80, हाउ डिड वी गेट दिस? वी आर गोइंग टू डिस्काउंट ऑल आवर कैश फ्लोज, ठीक है? तो अब 7% इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 100 पे, बिकॉज 100 वाज द फेस वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड. Yes, ma'am. तो 7 मिलेगा आपको एट द एंड ऑफ 1 ईयर, और आप इसको डिस्काउंट करोगे, ठीक है? फिर सेकेंड ईयर को डिस्काउंट करोगे. You will study this in your bond valuation classes. Third year के cash flows को, sorry guys, yeah, third year, then fourth year and fifth year में आपको क्या मिलेगा? 100 मिलेगा प्लस 7 मिलेगा, तो 107 को डिस्काउंट करोगे. यहाँ पर I'm assuming the same rate of interest for your coupon payment. कूपन क्या होता है? जो आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है उसको कूपन बोलते हैं बॉन्ड्स में, ठीक है? एंड द इंटरेस्ट रेट दैट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, ठीक है? अगर अब मैं 7 अज्यूम करूं तो मेरा प्राइस क्या आना चाहिए? यहाँ पर अगर आप ये करोगे ना पूरा, तो आपको यहाँ पर 100 आएगा, 80 नहीं आएगा, ठीक है? वाई? बिकॉज द इंटरेस्ट रेट दैट द बॉन्ड इज गिविंग यू इज व्हाट? 7, ठीक है? आपको 7 का कूपन मिल रहा है एवरी ईयर, एंड जो अभी इंटरेस्ट रेट मार्केट में भी चल रहा है वो भी 7 है. तो अगर ये इक्वल है तो ऑब्वियसली बॉन्ड का प्राइस तो 100 ही चलना चाहिए ना. Did you get my point? अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट में 7% रिटर्न मिल रहा है और मार्केट में भी 7% मिल रहा है, तो जो मार्केट का जो वैल्यू है वही तो आपको मिलना चाहिए. ज्यादा कम क्यों मिलेगा? Yes, ma'am. सिमिलरली अगर बॉन्ड आपको 7% दे रहा है, मार्केट में 9% चल रहा है, तो क्या आप इसके लिए 100 रुपया दोगे? नहीं. कितना दोगे? कम दोगे, ज्यादा दोगे? कम दूंगा. कम देंगे, राइट? तो मे बी 80 देंगे आप. Yes. तो मैंने यहाँ 80 लिखा था. तो इस केस में जो अब 80 है, 80 लाने के लिए मेरे को 9% यूज करना होगा मेरे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए, ठीक है? गोइंग फॉरवर्ड भी 9 होगा यहाँ पर. ऊपर में 7 क्यों है? क्योंकि दिस इज समथिंग दैट माई बॉन्ड इज गिविंग टू मी. 9 इज समथिंग दैट इज बीइंग गिवन बाय द मार्केट. Yes, ma'am. अब अगर मुझे 7 मिल रहा है, मार्केट में इंटरेस्ट 5 चल रहा है, तो इज माई बॉन्ड गुड और बैड? Good. गुड. तो आई विल पे अ ग्रेटर अमाउंट. Yes, ma'am. तो किससे ग्रेटर होगा? 100 से ग्रेटर दूंगी. हो सकता है मैं 110 दूं, Yes. ठीक है? सो व्हाट आर दे सेइंग? इफ योर इंटरेस्ट रेट राइजेस इन द मार्केट, तो आपका बॉन्ड प्राइस क्या होगा? फॉल होना चाहिए या राइज होना चाहिए? Fall होना चाहिए. फॉल होना चाहिए. वाई? बिकॉज मार्केट में तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आपका बॉन्ड तो इंटरेस्ट रेट कम दे रहा है आपको. अगर Yes, मार्केट ma'am. में 7% इंटरेस्ट था, ये भी 7 था, तो मैं 100 दे रही थी.
अब ये 7 का 9 हो गया, बट मेरा बॉन्ड तो अभी भी 7 दे रहा है, ये तो कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि कूपन, ठीक है। एक बॉन्ड में अगर कोई कूपन डिसाइडेड होता है ना, दिस नेवर चेंजेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। 5 साल में ये सेम ही रहेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट मार्केट में कितना भी चेंज हो जाए। तो अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहा है तो बॉन्ड का प्राइस फिक्स है, तो कभी इंटरेस्ट रेट कम भी तो होगा, तो बॉन्ड का प्राइसेस फिक्स नहीं है ना, बॉन्ड तो ट्रेड होता है ना मार्केट में। हाँ, जैसे बट आपके शेयर ट्रेड होते हैं तो बॉन्ड शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, तो बॉन्ड का भी तो प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है। कूपन फिक्स्ड है, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा बॉन्ड पे दैट रिमेन्स फिक्स्ड। ये जो 7 का कैश फ्लो मैंने आपको बताया ये सेम रहता है। दिस 100 कीप्स ऑन चेंजिंग, 180 कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके मैम, गॉट इट। अब यहाँ पर अगर 7 का 9 हो गया तो ये तो 7 ही मिल रहा है अभी भी आपको, तो इसकी वजह से क्या चेंज होगा, ये 100 चेंज होगा। समझ में आया? बट मैंने तो बॉन्ड पहले से ले रखा है ना, तो then I'll have to not bother ना कि चेंज हो रहा है नहीं वो हो एक साइकोलॉजिकल नोशन है ना, प्लस बॉन्ड तो ट्रेड भी हो रहा है ना मार्केट में। आपके पास बॉन्ड, आपको पता है आपको 100 मिलेगा, बट आपको जब पता है कि अरे यार, मतलब आप सोचते नहीं हो क्या कि अगर आपसे सपोज मैंने एक होम लोन लिया है, मैंने 10% पे लिया है, मुझे तो 10% एवरी ईयर देना पड़ रहा है, फिक्स लोन है। बट अगर मुझे पता है यार मार्केट में तो 7% पे मिल रहा है, मैं 10% दे रही हूँ, तो मुझे क्या बुरा नहीं लगेगा? आई विल ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट लोन ना, कि मैं क्यों दूं 10%। यस मैम। तो सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मुझे पता है कि आपको इन्वेस्टमेंट में 10% मिल रहा है, मुझे 7% मिल रहा है, सो विल आई बी हैप्पी? नो ना। प्लस बॉन्ड्स आर ऑल्सो ट्रेडेड, जैसे शेयर ट्रेड होता है ना, वैसे शेयर मार्केट बॉन्ड मार्केट भी होता है। तो बॉन्ड का भी प्राइसेस एवरी डे सेम, मतलब जो बॉन्ड आपके पास है उसी कंपनी का बॉन्ड, सेम वैल्यू, सेम टाइम, सेम कूपन रेट, वो ट्रेड होता है, प्राइसेस चेंज होते हैं। सो सपोज आपको अगर 5 साल नहीं रुकना है बॉन्ड में, अगर आपको निकलना है उससे पहले, तो आप जब बेचने जाओगे तो आपको तो कम प्राइस में मिलेगा ना। यस मैम। तो आपको तो उतना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिला ना अगर आपको कम प्राइस मिल रहा है। उस एस्पेक्ट से सोचिए। क्लियर है? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस क्यों कम हो रहा है? इज दिस क्लियर? प्लस अगर आप और एक चीज देखोगे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मैंने जो यहाँ 9 मतलब 7 था उसको 9 कर दिया, तो अगर आप मतलब किसी चीज को, जैसे अगर आप 100 को डिवाइड करो 1.07 से एंड सेम टाइम पे 100 को डिवाइड करो 1.09 से, तो आप देखोगे ये कम आएगा वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू इज योर प्राइस ऑफ द बॉन्ड दैट इज ट्रेडिंग, तो ये तो पीवी कम आएगा ना फिर, अगर आप ज्यादा रेट से इसको पुल करोगे। तो वैसे भी मैथमेटिकली भी अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड प्राइस, ठीक है। एंड क्यों फॉल होगा वो भी मैंने समझा दिया। कोई डाउट हो तो एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना। इफ यू हैव एनी डाउट, एवरी वन ऑफ यू प्लीज लेट मी नो। Another form of interest rate risk is the potential for change in the shape of the yield curve. Now yield curve क्या होता है कि हम लोग टाइम के अगेंस्ट में आपके रेट्स को प्लॉट करते हैं। जो मैंने बोला ना इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट जो चल रहा है, तो yield curve is something that we plot against time. इंटरेस्ट रेट्स अगेंस्ट टाइम को प्लॉट करते हैं कि अगर आप 1 साल का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें कितना रिटर्न चल रहा है, 2 साल में कितना, 3 साल में कितना, 4 साल में कितना, ठीक है। तो yield curve is always upward sloping. तो अब अगर yield curve में अगर कोई ब्रेक आ जाए, ये या मतलब ऐसे जाके ऐसे हो जाए, तो दिस इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द yield curve, राइट। पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया था, अब ये चेंज हो गया। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है ना, तो तभी भी आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है। एंड दिस इज मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क आने की वजह से फिर क्या होता है कि आपके शेयर प्राइस में मूवमेंट होता है, बॉन्ड प्राइस में मूवमेंट होता है एंड ऑल दैट। ऑलराइट, शेयर से ज्यादा बॉन्ड्स में ज्यादा इम्पैक्ट होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क का। Ma'am, does this mean that short-term bonds are less risky in terms of interest rate risk? Sorry, can you please repeat? Does this mean that my short-term bonds are less risky in terms Yeah, of correct. interest Short-term rate? bonds are less risky. Absolutely correct. Because on a shorter term investment, there is a less chance that your interest rate risk will move that much. Okay.
rate risk may arise from having positions that are either completely or partially unhedged. Obviously, now what does unhedged mean? You're not protected. अगर मुझे पता है कि मेरा कोई भी फायर से लॉस होने वाला है, I'm not taken insurance. I'm open on that. ठीक है, अनहेज पोजीशन है मेरा, मैंने इंटरेस्ट रिस्क को हेज नहीं किया है. एंड अगर आप मुझे इंटरेस्ट रेट से बचना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन एंटर इनटू इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसे आई एक्सप्लेन इट टू यू कि डेरिवेटिव्स आर समथिंग दैट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग सिमिलर. तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो इंटरेस्ट रेट के पैरिटी में मूव करेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उसके भी प्राइसेस बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो उसके भी प्राइसेस गिरेंगे. ठीक है, एंड दे विल हैव नो कनेक्शन टू माय अंडरलाइंग एसेट. मेरा जो बॉन्ड खरीदा है उससे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा. तो इससे क्या होगा कि मेरे बॉन्ड में जो भी नुकसान हो रहा है वो मेरे को उस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होने की वजह से कट ऑफ हो जाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस की अगर मुझे वेयर हाउस में फायर की वजह से लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस इज गिविंग मी दैट अमाउंट, सो आई एम नॉट फेसिंग एनी रिस्क. वैसे ही अगर मैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करूंगी तो मेरा वहां से प्रॉफिट हुआ वो जो भी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव से प्रॉफिट हो रहा है दैट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट माई लॉस इन माई बॉन्ड. ठीक है, दैट इज कॉल्ड बीइंग हेज्ड. एंड अनहेज्ड मतलब आई एम जस्ट बाइंग द बॉन्ड एंड होल्डिंग इट एंड मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क में अभी भी सेंसिटिविटी है. आई एम स्टिल फेसिंग दैट रिस्क. But ma'am, in some cases, दोनों साइड both can fail ना. सॉरी, In some cases, मान लो मेरे को इंटरेस्ट रेट से भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा और बॉन्ड से भी मेरा नुकसान हो गया. वैसा होता है अगर आपका मतलब अगेन अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे ना नेक्स्ट लाइन में दे आर मेंशनिंग बेसिस रिस्क. तो अगर आप कुछ ऐसे डेरिवेटिव में इन्वेस्ट किए जो एकदम भी रिलेटेड नहीं है कि अगर मेरा मतलब आप कोई ऐसा डेरिवेटिव चूज कर लीजिए जिसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क से एकदम इनवर्स रिलेशनशिप है तो वो तो आपके बॉन्ड के जैसा ही मूव करेगा ना. आपको तो इसमें ऑफसेटिंग करना पड़ेगा, ऑपोजिट ट्रांजैक्शन में एंटर करना पड़ता है. तो अगर आप सेम में एंटर करोगे तो दोनों में नुकसान होगा. वो तो आपको चूज करना पड़ेगा विच इन्वेस्टमेंट यू आर चूजिंग टू हेज योरसेल्फ. इफ यू आर एंटरिंग इनटू हेजिंग बट यू आर नॉट एक्चुअली मतलब हेजिंग योरसेल्फ, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू अ लॉस. प्लस हो सकता है कि आपको वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट मिले भी नहीं जो एकदम एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैप कर पाए. तो उससे क्या होता है? बेसिस रिस्क आ जाता है. बेसिस रिस्क मतलब हो गया कि यू आर नॉट एग्जैक्टली ऑफसेटिंग योर लॉस विथ योर गेन. ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. So basically in hedging, we transaction we do is opposite of the Right, one investment. right. So there is a chance that I might end up decreasing my profit as well. क्योंकि अगर मैंने हाँ क्या, सॉरी प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस. अगर मैंने अपोजिट ट्रांजैक्शन में इंटर करा है एक इन्वेस्टमेंट के तो देर इज चांसेस ना कि जिस जो मेरा मेन इन्वेस्टमेंट है उससे मेरा जितना प्रॉफिट हो और अपोजिट ट्रांजैक्शन उससे जो भी लॉस हो तो वो मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं डिक्रीज कर दे. नहीं तो जनरली क्या होता है कि आपकी जो ऑपोजिट ट्रांजैक्शन में, हाँ मतलब हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन, आप उल्टा बोल रहे हो इन द सेंस कि जनरली क्या होता है कि आपका जो लॉस होता है इन योर मेन ट्रांजैक्शन, जो मेरा बॉन्ड है सी सपोज उसमें जो लॉस हो रहा है उस लॉस को कम करने के लिए आई एम एंटरिंग इनटू डेरिवेटिव्स और माय हेजिंग पोजीशन. ठीक है, कि मेरा जो उससे लॉस हो रहा है, जो मेन इवेंट से लॉस हो रहा है वो थोड़े उसके प्रॉफिट से मेकअप हो जाए. लेकिन आप यहाँ अगर उल्टा बोल रहे हो तो वो भी होगा ही, बट दैट इज जस्ट लाइक अ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर यू. अब आप अगर एक इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप ये तो नहीं विश करते हो ना कि फायर हो ही जाए क्योंकि मैंने पे किया है प्रीमियम, राइट? Yes, ma'am. Got it. So that is something that you have to bear. That is a normal cost that you're bearing to protect yourself against interest rate risk या कोई भी और risk. Okay, think it from an insurance perspective. Yes. Coming to equity price risk, again general market risk जहाँ पर ब्रॉड मतलब अगर सेंसेक्स गिर रहा है ओवरऑल, सेंसेक्स यू ऑल नो राइट, जो इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, अगर सेंसेक्स निफ्टी गिर रहे हैं तो हो सकता है आपके स्टॉक्स भी गिरेंगे राइट, क्योंकि सेंसेक्स के ही पार्ट है वो या निफ्टी के ही पार्ट है, तो ओवरऑल गिरेगा. और हो सकता है कोई कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर से गिरे, रिलायंस अगर गिरे तो हो सकता है कुछ कंपनी में इधर उधर हुआ या प्रॉफिट इज नॉट गुड, अभी रिजल्ट्स निकले हैं Q1 के Q2 के तो उसकी वजह से गिर रहा हो. ठीक है, तो प्राइसेस जो भी चेंज होते हैं और बहुत ज्यादा चेंज, अगर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है तो उसको इक्विटी प्राइस रिस्क बोलते हैं. ठीक है, एंड मोरओवर एट द सेम टाइम कंपनीज हु आर देयर इन द सेम सेक्टर, से फार्मा हो गया या ऑटोमोबाइल हो गया, if something new comes up in the automobile sector or pharma sector, तो again stocks will move in a similar manner. उसको भी correlation बोलते हैं. ठीक है,
फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, अगेन फॉरेन एक्सचेंज मतलब रुपी डॉलर के रेट्स की वजह से भी आपके मार्केट्स में जो भी वॉलिटिलिटी आता है उसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बोलते हैं. एंड नॉट ओनली रुपी डॉलर, अदर रेट्स ऑल्सो. एंड दैट इम्पैक्ट योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑल्सो. तो एक कंपनी जो ज्यादा एक्सपोर्ट्स में है या कंपनी ज्यादा जो अपने रॉ मटेरियल इम्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है तो उसके भी बिजनेस में इम्पैक्ट होगा, तो उसके भी शेयर प्राइस गिरेंगे या बॉन्ड प्राइसेस में इम्पैक्ट होगा. तो ओवरऑल मार्केट रिस्क उसी में होता है. कमोडिटी प्राइस रिस्क, अगेन ऑटोमोबाइल्स के अगर कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं या से मे बी एनर्जी प्राइसेस जो होते हैं जैसे आपके फ्यूल कॉस्ट बहुत बढ़ रहे हैं, तो दैट विल ओवरऑल इम्पैक्ट द प्राइसेस ऑफ योर गुड्स. That will overall impact your share prices, overall impact your profitability levels and everything with respect to a company. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? एक बार पढ़ लेना पूरा टेक्स्ट को. इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो. क्रेडिट रिस्क जैसे मैंने बताया था, if the laws that you suffer when one party does not meet the obligation against that they had against you, primarily if they had to pay you some money or they had to say deliver you some goods and they don't do that. ठीक है, सो डिफॉल्ट रिस्क इसका भी सब टाइप्स है कि आपको जो भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल मिलने वाला था आपके लोन पे जो आपने दूसरे को दिया था वो नहीं मिला. बैंक्रप्सी रिस्क, जो दूसरा आपका काउंटर पार्टी है वो ऑपरेशन ही नहीं कर रहा है, दैट हैज स्टॉप्ड ऑपरेशंस, दैट हैज टर्न्ड बैंक्रप्ट, अगेन अ पार्ट ऑफ डिफॉल्ट रिस्क. ठीक है, डाउनग्रेड रिस्क, जिस एंटिटी के साथ मैं ट्रेड कर रही थी या जिस एंटिटी के साथ मैंने जिसको लोन दिया था उसका रेटिंग डाउनग्रेड हो गया. नाउ रेटिंग इज अ रैंकिंग दैट इज देयर ऑन द क्रेडिट एबिलिटी ऑफ अ बोरोवर. तो से सपोज इफ यू आर रेटेड ट्रिपल ए, रिलायंस का रेटिंग ट्रिपल ए है. ठीक है, तो रेटिंग का मतलब होता है कि हाउ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल डिफॉल्ट इज वेरी लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज वेरी लो. तो अगर आप एक ट्रिपल ए रेटेड एंटिटी को लोन दे रहे हो इसका क्या मतलब है कि आपका डिफॉल्ट नहीं होगा. ऑलमोस्ट ऐसे चांसेस है कि डिफॉल्ट नहीं होंगे. सिमिलरली इफ आई एम ट्रेडिंग विद समवन हु इज एट से मे बी ट्रिपल बी और डबल बी, इसमें प्रोबेबिलिटी से मे बी 5% होता है कि लॉसेज हो सकता है. जस्ट गिविंग यू अ नंबर. सो आई विल मे बी थिंक कि 5% तो ऐसा हो सकता है कि मेरा नुकसान हो जाए, राइट. सो आई विल थिंक ट्वाइस बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रेड विद दीज गाइज. नाउ अगर डाउनग्रेड हो जाए, आई वाज एट ट्रिपल बी एंड माय रेटिंग गेट्स डाउनग्रेडेड टू डबल बी. ट्रिपल बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट वाज 5%, डबल बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 15% या 25%. सो आई विल इट विल रेज अ क्वेश्चन टू माय माइंड ना कि मेरा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हैज राइजन नाउ, तो व्हाट डू आई डू इन सच अ केस, हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ. ठीक है. एंड काउंटर पार्टी रिस्क, अगेन दे हैव यूज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का एग्जांपल हियर कि जैसे अगर अब मैं एक डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में एंटर की हूँ, ऑब्वियसली आई एम एंटरिंग इनटू इट विद सम अदर काउंटर पार्टी, राइट. सो अ विन फॉर मी इज अ लॉस फॉर समवन एल्स. सो दैट समवन एल्स may choose to not honor the contract. ठीक है, he will default on the contract. तो वैसे भी केसेस आ सकते हैं, तो उसको हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं. ठीक है, क्रेडिट रिस्क समझ में आ गया यहाँ तक? Guys, yes, no? Yes, ma'am. अब एक एग्जाम्पल दिए, लेट अस गो टू दैट एग्जाम्पल. Consider an example where one's investors net gain on a futures contract. Futures contract again क्या होता है? Do you know what is a futures? Have you studied derivatives? Yes. Please help me with क्या होता है futures? Ma'am, in futures, basically in markets we purchase a future option which in hope that it will increase if the market goes up. So I'll tell you. Say suppose I am a oil company. No. Say suppose I'm an airline company. एयरलाइन कंपनी को क्या चाहिए होता है? एयरलाइन फ्यूल. एयरलाइन फ्यूल अलग होता है, इट्स नॉट पेट्रोल डीजल, राइट. I have to buy aviation fuel. अब मुझे पता है अगर एविएशन फ्यूल का अभी दाम चल रहा है $1,000 पर लीटर अभी आज के दिन में, अगर मेरे को गोइंग फॉरवर्ड दिख रहा है कि दिस एंड आई विल नीड दिस, राइट. अगर मैं एक एयरलाइन कंपनी हूँ, सेम सपोज एयर इंडिया, आई विल नीड दिस ऑन अ डेली बेसिस फॉर माई ऑपरेशंस. तब अगर मुझे दिख रहा है कि ये एक महीने बाद आफ्टर 1 month the price is going to increase to $2,000 per liter. But obviously I'm not going to buy it right now. What will be the general scenario? अगर मुझे पता है प्राइस बढ़ेगा तो मुझे अभी खरीद लेना चाहिए. मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है 1 महीने के बाद का वो भी खरीद लेना चाहिए.
बट उससे क्या होगा, मुझे तो स्टोरेज भी देखना पड़ेगा ना, एंड ऑब्वियसली स्टोरिंग सच अ ह्यूज अमाउंट, विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू स्टोर? नहीं ना. प्लस No, ma'am. वेयर हाउस रिस्क भी हो सकता है, माई फायर इंसिडेंट्स कैन इंक्रीज. सो व्हाट डू? आई एंटर इनटू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव, ठीक है. सो यहाँ पर मैं एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगी. नाउ आई एम एन एयरलाइन कंपनी, आई विल नीड टू बाई, राइट? So Yes. what I will do, I will enter into a futures contract. The name speaks for itself. इसका मतलब होता है contract to buy airline fuel. Say suppose I have entered into a contract to buy 1 million liters at after 1 month. ठीक है. अब मैंने आपको क्वांटिटी बता दिया, टाइम बता दिया, प्राइस कितना पे मैं खरीदूंगी वो आज जो ही अभी fix जो करंट मार्केट प्राइस होगा. राइट. सो वो रेट अभी फिक्स हो जाएगा. तो जो अभी मेरा 1000 रुपया लीटर चल रहा है, मैं उसी रेट पे फिक्स कर लूंगी. ठीक है. तो Yes. अब एक महीने बाद क्या होगा कि मुझे तो 1 मिलियन लीटर एट 1000 मिल गया, बट से मार्केट में प्राइस 2000 हो गया. बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, अब इसको 1200 पकड़ लो. मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है? 1 मिलियन एट 1200, तो ये 1200 मिलियन मैंने खरीदा 1000 मिलियन में, राइट? तो 200 मिलियन का मेरा तो बचा ना प्रॉफिट. समझ में आया? Yes, ma'am. उसको फ्यूचर्स बोलते हैं. सो यहाँ पर इन लोग क्या बोल रहे हैं? व्हेन एन इन्वेस्टर्स नेट गेन ऑन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज $5 लाख, से मे बी एयरलाइन कंपनी का गेन हुआ है $5 लाख का एट सेटलमेंट जहाँ एक महीने बाद का पीरियड है. The counterparty must pay this amount, but they have encountered financial difficulty and are only able to pay $4 लाख. अब एयरलाइन कंपनी का हो सकता है जो फ्यूल बेच रहा है, जो ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी है. This estimated amount is called the recovery value, and the 1 lakh will be its lost is known as the loss given default. जो हम लोग पढ़े थे, रिकवरी वैल्यू और लॉस गिवन डिफॉल्ट. लॉस गिवन डिफॉल्ट इज ऑलवेज 1 माइनस योर रिकवरी वैल्यू. ठीक है. तो लॉस गिवन डिफॉल्ट यहाँ पर सिंस 5 लाख का आपका एक्सपोजर था, जो हम लोग ईएल के फॉर्मूला में पढ़े थे, एक्सपेक्टेड लॉस के फॉर्मूला में, लॉस आपका हुआ कितना का? 1 लाख का. तो दिस इज योर लॉस सिवियरिटी जो हम लोग पढ़े थे, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एंड 4 लाख आपका रिकवरी वैल्यू है. एक्सप्रेस इन परसेंटेजेस, द रिकवरी रेट इज 80% एंड द एलजीडी इज 20%. एलजीडी हम लोग पढ़े थे ना, लॉस सिवियरिटी. If the recovery rate is 0%, then the counterparty would be in complete default and possibly in a bankruptcy scenario. ठीक है. Risk managers use sophisticated modeling to properly consider credit risk. Following is a line of some very important considerations related to the risk management and identification process. अब आप कैसे identify करोगे credit risk को in risk management? That becomes very important because credit risk and market risk ideally are the two most important risks that you face in an organization or while entering into trades, and these should be considered very monetarily. Is the interest rate charged on the instrument commensurable with the risk taken? Again, higher risk, higher reward. अगर आप ज्यादा risk ले रहे हो तो ज्यादा interest भी मिलना चाहिए. अगर नहीं मिल रहा है तो whether you should enter into that or not. Is a portfolio of instruments diversified both geographically and by industry? Why? Diversify होना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक इंडस्ट्री में से सपोज बहुत एक इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रहा है, तो जितने भी आपके अगर हो सकता है आपने अपने पूरे लोन्स उसी में रख रखे हैं, तो सब में डिफॉल्ट होगा. कोरिलेशन यहाँ पर आप लिख सकते हो, कोरिलेशन. और अगर एक ज्योग्राफी अच्छा नहीं कर रहा है, जैसे मे इंडिया में रिसेशन है या यूएस में रिसेशन है, तो जितने भी आपके यूएस बेस्ड स्टॉक्स है सब में नुकसान होगा. या वर्ल्ड वॉर चल रहा है या ईरान इसराइल है, आपके स्टॉक्स वहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सब में नुकसान होगा बिकॉज द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड. Have correlations between instruments and other risk factors been properly considered? Correlation risk कि अगर होम प्राइसेस गिर रहे हैं, होम लोन्स है, तो क्या रिस्क होगा. ठीक है. एंड ऑल दैट. फर्म स्पेसिफिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज. अगेन, कोई कंपनी में दिक्कत है तो उसको एनालाइज करना, कोई इंडस्ट्री में दिक्कत है तो उसको एनालाइज करना. Is a lender exposed to a large number of small loans or a small number of large loans? Concentration can be a real concern. Concentration मतलब अगेन आप एक सेक्टर में या एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ज्यादा लोन्स दे रखे हो, तो दैट विल ऑलवेज बी अ कंसर्न. लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लोन्स, बहुत छोटे छोटे लोन्स दे रखे हो. ठीक है. एंड स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज लोन्स.
विच इज बेटर? कॉन्सेंट्रेशन रिस्क किसमें ज्यादा होगा बोलो? यहाँ 3 लोन है, यहाँ 50 लोन्स है. स्मॉल में ज्यादा होगा कंसंट्रेशन. सॉरी, स्मॉल में ज्यादा होगा कंसंट्रेशन. किसमें ज्यादा होगा? फर्स्ट में ना, स्मॉल में ज्यादा होगा, राइट. तो अगर इसमें एक में भी डिफॉल्ट हो गया और बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो रहा है क्योंकि लार्ज अमाउंट है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज लोन्स, लार्ज मीन्स अमाउंट ज्यादा है, तो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. और इसमें छोटे छोटे लोन्स है, एक में भी डिफॉल्ट हुआ या 5 में भी डिफॉल्ट हो गया तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट देखना चाहिए पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि कैसा क्या रहा है अक्रॉस इंस्ट्रूमेंट्स, एंड प्रोबेबिलिटीज कोरिलेटेड है कि नहीं से मे बी अगेन ऑटोमोबाइल सेक्टर का, होम लोन सेक्टर का कोई कोरिलेशन है कि नहीं, एंड ऑल दीज फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड. ठीक है. अगेन लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क में भी मैंने जैसे बताया था, आप अगर बेचना चाह रहे हो बट अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, या अगर बेचना चाह रहे हो तो सेलर्स नहीं मिल रहा है. फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, और एक होता है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क. ठीक है, 2 होता है. मार्केट जो मैंने आपको बोला, बेचना चाह रहे हो बट बेच नहीं पा रहे हो, ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क भी बोलते हैं. इसीलिए refers to losses flowing from a temporary inability to find a needed counterparty. ठीक है, सेलर नहीं मिल रहा है या बायर नहीं मिल रहा है. This risk can cripple an entity's ability to turn assets into cash at any reasonable price. आपको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा आपके एसेट के लिए. Transactions with an element of immediacy might need to be consummated with a significant discount. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हर्ष अगर ओनली बायर है तो आई विल हैव टू रिलाई ऑन हिम, वो चाहे जो भी प्राइस दे मुझे, which typically translates into a huge loss. This impact of market liquidity could include impairments in an entity's ability to control market risk and to cover any funding shortfalls. अब इसमें क्या होता है कि से मे बी मेरा एक शेयर लिया हुआ था, उस शेयर में मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया. ठीक है, बट वो शेयर मैंने किसी से बोरो किया था, तो मुझे तो वो शेयर वापस किसी को रिटर्न करना है. तो अब मैं कैसे रिटर्न करूं, क्योंकि शेयर मार्केट में तो वो शेयर अच्छे प्राइस में मिल ही नहीं रहा है. तो मेरे को मे बी हर्ष के पास रिलाई करना पड़ेगा कि हर्ष मेरे को वो शेयर चाहिए, आप दे दो. तो हर्ष मेरे से बहुत उल्टा पुल्टा दाम लेंगे. तो से मे बी शेयर अभी चल रहा है 300 में ही, बट मेरे को हर्ष को 1000 रुपया देना पड़ेगा उस शेयर के लिए. ठीक है, तो उसको भी फंडिंग शॉर्टफॉल बोलते हैं कि आई एम नॉट हैविंग दैट शेयर, या आई एम नॉट हैविंग मनी टू बाई दैट शेयर, सो आई हैव टू बाई इट फ्रॉम हर्ष. मे बी हर्ष विल अग्री टू टेक दिस अमाउंट एट अ लेटर स्टेज फ्रॉम मी, which is why I have to rely on him and pay this amount because I'm facing funding shortfall. All right, clear? Market liquidity clear हुआ, then I'll move to funding liquidity. Yes, ma'am. Funding liquidity again occurs when an entity is unable to pay or refinance its debt, satisfy cash obligations to counterparties or fund capital withdrawals. ठीक है, इसका मतलब आपको जब लोन चाहिए होता है, बैंक से लोन चाहिए या आपको एकदम फंड्स का दरकार है, बट आपको फंड्स अच्छे रेट पे एट अ कंपैरेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 300 का शेयर मुझे 1000 रुपया में खरीदना पड़ा, तो वैसे ही अगर मुझे लोन चाहिए सो मे बी आई विल हैव टू पे अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, एंड ये ज्यादा अकर होता है कि अगर आप एक बैंक हो, तो बैंक में क्या होता है ना, अगर आप बैंक का बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पर एसेट एंड लाइबिलिटीज में बैंक्स के डिपॉजिट्स आते हैं, जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स और मनी अपना रखते हैं ना अकाउंट्स में, सेविंग्स अकाउंट एंड ऑल दैट, वो सब आता है. एंड एसेट्स में बैंक का जो उन लोग लोन देते हैं वो आता है. तो अब अगर ऐसे केस में लाइबिलिटी साइड में तो आपके डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स अकाउंट है, तो उसको हो सकता है कि उसका मैच्योरिटी कितना होता है, मैं तो कभी भी जाके अपना पैसा वापस निकाल सकती हूँ, राइट. तो लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म इन नेचर. और अगर एसेट्स आप देखोगे तो लोन तो उन लोग बहुत साल का देते हैं, 10 साल 20 साल. तो उस केस में अगर आप लोन ज्यादा टेन्योर का दे रहे हो और आपको लाइबिलिटी तुरंत पे करना है, तो ये तो टाइमिंग मिसमैच है ना, राइट. एसेट लाइबिलिटी टाइमिंग मिसमैच हुआ कि नहीं हुआ. अब उससे क्या होगा कि अगर इकोनॉमी में कुछ भी गड़बड़ हुआ या इंटरेस्ट रेट रिस्क, जैसे कीर्ति हाईलाइटेड, और शॉर्ट टर्म रिस्क में, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में कम रिस्क होता है, तो लॉन्ग टर्म में अगर ज्यादा रिस्क है, माय एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन नेचर तो रिस्कियर, एंड माय लाइबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म इन नेचर तो लेस रिस्की. So in this case, what will happen? If I face some issues in my asset, I will not be able to satisfy my liabilities. Right? So these risks should also be considered. अगर आप देखोगे ये लिखा है, natural mismatch between assets and liabilities, short-term deposits mismatch with longer-term loans. ठीक है? Improper risk management of this fundamental mismatch leads to bank defaults during the financial crisis of 7 and 9. Clear?
Guys, yes, no, I'll move to operational risk. Harsh, you have a question? No, ma'am. Again, operational risk जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर सिस्टम्स, ह्यूमन एरर, प्रोसेसेस, एक्सटर्नल कुछ भी इवेंट हो गया, टेक्नोलॉजी रिस्क, इनसफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल्स, प्रोडक्शन में कुछ मैनेजमेंट फ्रॉड, ठीक है, एम्प्लॉय मिस्टेक्स, नेचुरल डिजास्टर, साइबर सिक्योरिटी रिस्क और रोग ट्रेडर्स, ठीक है. Within a financial institution, the leveraged nature of derivative transactions makes them highly susceptible to operational risk. Leveraged nature of derivative transactions, can someone help me out? क्या meaning हुआ इसका? By leverage we mean, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में देखो, ये फ्यूचर्स वाज अ डेरिवेटिव, यहाँ आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, क्या आपको कुछ पैसा अपफ्रंट देना पड़ा था? Yes, ma'am. कहाँ देना पड़ा था हर्ष? When we have entered the contract, we have to pay the amount, ना, that इतने अमाउंट पे मैंने फिक्स करा. नहीं, वो तो आप 1 महीने बाद दे रहे हो ना, तुरंत थोड़ी दे रहे हो. Okay. वो अमाउंट 1 महीने बाद जाता है. और फ्यूचर्स में क्या होता है ना, अमाउंट ऐसे भी नहीं जाता है. फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट सेटल होते हैं, ठीक है. तो ये जैसे 1000 में आपने एंटर किए थे और अभी 1200 चल रहा है ना, तो आपको 200 मिलियन ही कैश फ्लो मिलेगा इधर, ठीक है. ये डेरिवेटिव मार्केट हो गया. तो डेरिवेटिव मार्केट में हमेशा डिफरेंसेस में काम होता है, ठीक है. इसमें कोई अमाउंट ब्लॉक नहीं होता? सॉरी, जब भी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो कोई अमाउंट हमारा ब्लॉक नहीं होता? नहीं. दैट इज व्हाई फ्यूचर्स मतलब डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज लेवरेज, ठीक है. फ्यूचर्स में, फॉरवर्ड्स में कोई भी अमाउंट आपका ब्लॉक नहीं होता है, इसीलिए वो लेवरेज होता है कि आप बिना पैसे के काम कर रहे हो. एक और होता है ऑप्शंस. ऑप्शंस में अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू क्या होता है ऑप्शन, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, बिकॉज यू विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट रीडिंग या मे बी इन सम अदर बुक. इसलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू द एक्चुअल जिस्ट ऑफ व्हाट ऑल दीज आर. बट ऑप्शंस में एक प्रीमियम होता है. बट वो जैसे एक शेयर है, शेयर अगर वैल्यू है 2000, तो आप ऑप्शंस में वही सेम काम जो एक शेयर का होता है वो करके निकल सकते हो मे बी 20 रुपए में. तो कम पैसा लगा ना. और फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स में तो आपको पैसा देना ही नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए उसको लेवरेज बोलते हैं कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है. Yes, तो ma'am. इसमें लेवरेज है, इसीलिए ज्यादा ऑपरेशनल रिस्क होता है, क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क आ जाता है. काउंटर पार्टी भाग जाएगा या कुछ भी सिस्टम में फ्लॉ हो सकता है, ठीक है. तो उसकी वजह से नुकसान जो होता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस में लॉस, एंड दैट इंक्रीजेस बिकॉज योर डेरिवेटिव्स आर लेवरेज्ड इन नेचर. एंड मैं जो यहाँ पर फ्यूचर्स का आपको समझा रही थी, तो ये डिफरेंसेस में काम होता है. तो 1 महीने बाद क्या होगा कि आपको 1000 रुपया में खरीदना नहीं पड़ेगा. आपको जो डिफरेंस है 1200 और 1000 का, वो डिफरेंस मिल जाएगा. फिर आप जो स्पॉट मार्केट है, जो आपका एक्चुअल एयरलाइन फ्यूल का मार्केट है, उसमें आप जाके 1200 में खरीद लोगे, ठीक है. लेकिन 1200 आपका यहाँ पर लगा तो 200 का यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ, तो आपका नेट क्या पड़ा? 1200 माइनस 200, 1000 रुपए पड़ा ना. 1000 रुपए. Yes, ma'am. ऐसे काम होगा, ठीक है. अब यहाँ पर जैसे आप मॉडल्स यूज करते हो कॉम्प्लेक्स एसेट्स को वैल्यू करने के लिए, मैंने जैसे बॉन्ड वैल्यूएशन दिखाया था आपको, पीवी निकालने का, उसका पूरा मॉडल होता है. वैसे ही ऑप्शंस वैल्यू करने का मॉडल होता है, डेरिवेटिव्स का वैल्यू निकालने का मॉडल होता है. उस मॉडल में कोई फ्लॉ हो गया तो उससे भी आपको ऑपरेशनल रिस्क गलत निकल सकता है, क्योंकि आपके वैल्यूज गलत निकल जाए, ठीक है. अब हो सकता है बहुत, अगर जनरली क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं मोर ज्यादा लिक्विड होता है, ठीक है, ज्यादा लिक्विडिटी होता है दैन योर जनरल एसेट मार्केट. अगर मैं जनरल स्टॉक मार्केट बोलूं या जनरल बॉन्ड मार्केट बोलूं, उससे ज्यादा लिक्विड आपका डेरिवेटिव मार्केट होता है. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में काम हो रहा होता है, राइट. बट अगर अब बहुत कॉम्प्लेक्स एसेट है तो उस एसेट में तो लिक्विडिटी नहीं होगा ना. एक सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स, अगर आप एक पढ़ाई का ही सोचिए, एक बहुत कॉम्प्लेक्स कोर्स है एक्चुअलीज, या मतलब नॉट टू जनरलाइज से, मे बी, हाँ ठीक है, मतलब या डॉक्टरी है या साइकोलॉजी है, बहुत कम लोग होंगे उसमें, राइट. एक सिंपल, इफ आई एम टेकिंग सीए, बहुत नोन है, बहुत पॉपुलर है, तो बहुत लोग उसमें होंगे, राइट. तो उसमें लिक्विडिटी कम होगा कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज अगेन आपके प्राइसेस उतने ज्यादा वैल्यू नहीं होंगे. यू विल फेस डिफिकल्टीज इन वैल्यूएशन.
ऑपरेशनल रिस्क ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अगेन अ वेरी nice system, very robust system of internal controls is required to monitor operational risk also. All right. Legal and regulatory risk, जैसे मैंने बताया था, regulatory risk refers to uncertainty surrounding actions by a governmental entity and legal risk potential for litigation, कि अगर आपके कुछ actions की वजह से या companies में litigations आते रहते हैं तो उसके वजह से क्या variability हो सकता है आपके operations में या क्या losses हो सकते हैं, ठीक है। Business and strategic risk. Business risk refers to variability in inputs that influence either revenues, that is consumer demand or product pricing, और cost structures, ठीक है। Business risk generally जो आपके मतलब demand and price या inputs के prices में risk होते हैं उसको बोलते हैं। Diverse business elements such as new product innovation, shipping delays and production cost overruns could be labeled as business risk. Normal risk जो भी होता है। Strategic risk involves long-term decision making about fundamental business strategy. अब आप business strategy कैसे मतलब establish कर रहे हो, उसमें क्या flaws है या ठीक से establish कर पा रहे हो कि नहीं, whether long-term business strategy establish कर पा रहे हो कि नहीं, तो वो सबको हम लोग strategic risk बोलते हैं। These long-term strategic initiatives may involve large capital investments in either equipment or human capital, ठीक है। अब say suppose if I take the example of Nokia. Nokia पहले phones बनाता था, right? So very popular, I think all of you might have experienced what Nokia was. बहुत long term रहता था, बहुत durable phones होता था, right? But keypad phones रहते थे. अब as the world moved towards touch screens, did Nokia sustain its market share in the mobile industry? No, right? Why? Because it did not develop touch phones. It did not move ahead with the market trend, right? So it lost its market share. Ultimately, company बंद हो गया. Right. Similarly, if I take cameras, DSLR and all that, those came, like बहुत अच्छा चला, Nikon हो गया, Kotak हो गया, but did they actually sustain their market share? No, because people eventually moved into mobile phones and smartphones. So they weren't able to sustain. They cannot manufacture mobile phones and smartphones. So ultimately आपको strategy पे देखना पड़ेगा ना आपका कि long term strategy क्या है, long term market trends क्या रहेंगे, लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी कैसे मूव करने वाला है। तो अगर आप ये सब नहीं सोचोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन अलोंग विद द मार्केट ना। अगेन इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ टाटा, इफ टाटा डज नॉट एंटर इनटू ग्रीन फ्यूल कार मैन्युफैक्चरर्स और खाली पेट्रोल ड्रिवन कार्स ही बनाए तो गोइंग फॉर तो पेट्रोल अगर नहीं चलेगा एट ऑल तो टाटा विल हैव टू वाइप आउट फ्रॉम द मार्केट ना, विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। ईवी में अगर नहीं एंटर करे कोई कंपनी, एडमेंट रहे कि नहीं आई विल नॉट एंटर इनटू ईवी, विल इट बी एबल टू सर्वाइव? नो, because people are ultimately going to move along with the trend. Okay, so these aspects are strategic risk that you have to move along with the trend. You will have to think long term के लिए, and business risk again the decisions with respect to your demand, with respect to your revenues and profitability. Business risk में आप एक बार लिख लो revenue, prices, profit and cost of production. ठीक है, just write this down: revenue, prices, profit and cost of production. Reputation risk, danger that a firm will suffer a loss in public perception or consumer acceptance, loss of confidence in the firm's financial soundness. Financial अगर आपके अच्छे नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ है कंपनी में, कुछ financial fraud हुआ है तो उसके वजह से एक loss of reputation या perception of a lack of fair dealing with stakeholders. Again जैसे मैंने टाटा वाला एयर इंडिया वाला एग्जाम्पल दिया, वो भी हो सकता है। Reputation risk is often one of the outcomes of experiencing a loss in another risk category. टाटा वाला लॉस किस में आएगा? अगर मैं बोलूं जो एयर इंडिया क्रैश हुआ वो कौन से में आएगा? गाइस टेल मी किस में आएगा? अगर यहाँ पर बोला है कि रेप्यूटेशन रिस्क इज द इम्पैक्ट ऑफ सम अदर रिस्क कैटेगरी में लॉस, तो एयर इंडिया क्रैश किस में आएगा फॉर टाटा? ऑपरेशनल, करेक्ट, बिकॉज आपके सिस्टम्स फ्लॉ हुए या कुछ भी मतलब मैकेनिकल फ्लॉ हुए, उसकी वजह से योर एयरलाइन क्रैश एंड हेंस यू आर फेसिंग रेप्यूटेशन रिस्क ऑन अ ओवरऑल ग्रुप लेवल. टाटा ग्रुप इज फेसिंग रेप्यूटेशन रिस्क, राइट? नाउ दे हैव गिवन एग्जांपल कि एक बैंक अगर बहुत क्रेडिट रिस्क
फेस करता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी रेप्यूटेशन रिस्क हो सकता है। ठीक है, साइबर अटैक, अगेन ऑपरेशनल रिस्क, कुछ भी हुआ है कंपनी में, रेप्यूटेशन रिस्क। सोशल मीडिया, जैसे मैंने व्हाट्सएप वाला एग्जांपल बोला था। The impact of reputation risk on an entity could start with lost profits and eventually lead to insolvency as public perception of the entity diminishes together with the value of the entity. अगर वो reputation वापस नहीं revive कर पाया तो obviously bankrupt हो जाएगा. The share price will keep on falling, profits will keep on falling, people will lose its trust and ultimately it will end up being bankrupt. Overall, an entity should clearly define its holistic means overall एपेटाइट फॉर एज्यूमिंग रिस्क. आपका कितना एपेटाइट है, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. ठीक है, रिस्क फैक्टर इंटरैक्शंस. नाउ अपने अभी तक जितने भी रिस्क पढ़े हैं वो सब कोरिलेटेड है. अगर मार्केट में कुछ इधर उधर हो रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, या मार्केट इज नॉट डूइंग गुड, इकोनॉमी रिसेशन में है और पर्टिकुलर कंपनी इज नॉट डूइंग गुड, उसके शेयर प्राइस फॉल हो रहा है, तो उससे क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा, लिक्विडिटी रिस्क बढ़ेगा. ऑपरेशनल रिस्क अगर हो रहा है तो रेप्यूटेशन रिस्क हो सकता है. राइट, बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, बिजनेस रिस्क हो रहा है, आपके अच्छे स्ट्रैटेजीज नहीं है, तो अगेन मार्केट विल बी इंपैक्टेड, योर शेयर प्राइस विल बी इंपैक्टेड, अल्टीमेटली यू विल एंड अप बीइंग बैंकरप्ट. तो सारे रिस्क कोरिलेटेड है. जस्ट राइट डाउन कोरिलेशन हियर. ठीक है, तो सारे रिस्क कोरिलेटेड है. सो अगर आप एक रिस्क मैनेजर हो या एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एस्टैब्लिश कर रहे हो, सो यू नीड टू कंसिडर ऑल द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट योर बिजनेस, ऑल द रिस्क दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस. और अगर एक रिस्क हुआ तो दूसरा रिस्क से कैसे इम्पैक्ट कर रहा है बिजनेस को, हाउ टू सेव माई सेल्फ, हाउ टू सेव माई ऑर्गेनाइजेशन. अगेन तो रिस्क विल बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते हो कि आप एक ऐसी रिस्क को देखो. आप एक रिस्क को नंबर 1 मार्केट देखोगे, फिर अलग से क्रेडिट रिस्क को देखोगे, फिर चौथा लिक्विडिटी देखोगे. ऐसे नहीं, आपको इंटरकनेक्टेड वे में ऐसे देखना पड़ेगा कि इधर एक रिस्क है तो दूसरा रिस्क इधर है, तीसरा रिस्क ऐसे. ठीक है, दे शुड बी इन अ प्रॉपर हैंड होल्डिंग सिनेरियो कि आप एक साथ सारे रिस्क को देख रहे हो. ठीक है, बट ऑब्वियसली यू विल फेस चैलेंजेस ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली हो सकता है कि आप एक रिस्क को अच्छे से मेजर कर पाओ, दूसरे रिस्क को नहीं कर पा रहे हो. बट एक साथ अगर आप नहीं देखोगे और एक साथ क्यूमुलेट करना भी कि क्या इम्पैक्ट होता है, बहुत टफ होता है. बट वो सब एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का ही, मतलब एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का निशानी होता है कि यू आर एबल टू actually measure risk in a consolidated manner, not at an independent level. Granularity here, matlab you should try to understand what are the granular risk factors, but again you should look at all these granular risk factors and try to correlate them into an overall risk management process. ठीक है, जो हम लोग एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसमें आपको देखना पड़ेगा. अगेन यू कैन यूज VER, जैसे हम लोग पढ़े थे. You can use VER, you can use scenario analysis, you can use stress testing, you can use expected shortfall and all that. ठीक है, फिर यहाँ पर ना VER का आपको ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस बताए, तो वो हम लोग लास्ट क्लास पढ़ लिए थे. जस्ट गो थ्रू दिस, अगर कुछ भी लगता है तो लेट मी नो. एंड देन एक और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल. इसका वैल्यू होता है आपका जो भी आफ्टर टैक्स रिस्क एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक कैपिटल. ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि हम लोग का कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होना चाहिए फॉर एवरी यूनिट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल दैट वी आर पुटिंग इन. एंड इकोनॉमिक कैपिटल में वी टेक इनटू योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज वेल एज योर कॉस्ट ऑफ डेट. ठीक है, यहाँ पर क्यों RAROC यूज करते हैं और किस एस्पेक्ट्स में यूज करते हैं वो दिया है कि बिजनेस कंपैरिजन, आप दो बिजनेस को कंपेयर कर सकते हो अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग इंडस्ट्रीज के. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उससे मेरे को कितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो देख सकते हो एक पर्टिकुलर सेक्टर में. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मुझे कितना एक प्रोडक्ट का प्राइस रखना चाहिए सो दैट आई गेट अ सफिशिएंट रिटर्न. एंड रिस्क मैनेजमेंट, अगेन हायर रिवॉर्ड हायर रिस्क वाला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर प्लीज गो थ्रू द चैप्टर बिकॉज वी हैव डन 1 चैप्टर. कुछ भी क्वेश्चंस आता है प्लीज लेट मी नो इन द ग्रुप और मे बी इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वील प्रोसीड अहेड. ठीक है, we'll have the next class on Saturday. Let us go through these questions quickly, please.
In considering the major classes of risk, which risk would best describe an entity with weak internal controls that could easily be circumvented with a lack of segregation of duties? Business, legal and regulatory, operational and strategic. Guys, please tell me quickly. This is very easy. Operational risk. Operational. Right? Correct. Then the next question. Local bank incorporation has loaned funds to a private manufacturing company named We Make It All. The current balance of the loan is $1 million, outstanding amount itna hai, and it is secured by a piece of land and the corresponding building owned by WMIA. Okay? Due to economic downturn, WMIA जो loan लिया था has suffered a loss for the first time in its 10-year operating history and is currently experiencing some cash flow difficulties. In addition, the land and building that is held as collateral has recently been appraised at only $8 lakh. Appraised मतलब उसका जो अभी recent valuation हुआ है उसके according उसका value $8 lakh ही है. पहले कितना था? पहले 1 लाख मतलब 10 लाख से ज्यादा होगा obviously because उसको आपने collateral रख के loan लिया था. Your loan was $10 lakh. Based only on the information provided, which of the following risks faced by LBI has increased? LBI was your bank which has provided the loan and which has the collateral. Tell me which risk. ऐसी questions आपके exam में आएंगे. This question number 2 is a typical question that comes in your exam. Ma'am, bankruptcy and settlement risk. Okay, I'll check the answer. I'm not telling you the answer right now. Number 3 का बताइए. Which of the following statements is correct relative to risk aggregation? Enterprise level risk should be reduced to a single number. Example, value at risk for ease. Expected shortfall provides a more complete understanding of the potential magnitude of losses. Risk aggregation is more straightforward for derivative contracts. Measuring dispersion using the option Greeks can streamline the risk aggregation process. Okay, so this was in the last page. जैसे मैंने आपको risk aggregation पूरा समझाया, यहाँ पर है अगर आप ये पढ़ोगे. A significant danger in risk management occurs when independent risk factors are correlated. For example, a granular factor that leads to default risk for a loan could ultimately spill over into credit risk, operational, business and reputation risk. ठीक है, एक रिस्क से और भी सारे रिस्क खुलते जाते हैं. This is most dangerous with unexpected losses. ठीक है, क्योंकि unexpected losses anyway large होता है, उसमें आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो पहले से कंट्रोल, और फिर और भी रिस्क अराइज हो रहे हैं उसकी वजह से. Realizing the potential for correlation between risk will help a risk manager measure and manage unexpected losses with marginally more certainty. For example, a risk manager could consider historical correlations between identified risk factors and forecast the nature of these relationships to measure the risk planning process. इसका मतलब क्या है कि जो भी रिस्क अराइज हो रहे हैं आप पास्ट हिस्ट्री में देख सकते हो कि अगर ऐसा कुछ रिस्क हुआ था तो उसकी वजह से क्या क्या रिस्क हुआ, क्या कोरिलेशन था, कैसे अराइज हुआ था. कि से सपोज अगर मुझे क्रेडिट रिस्क लॉस हुआ था ऑफ 1000 मिलियन एंड उसकी वजह से मेरा 500 मिलियन का ऑपरेशनल रिस्क भी लॉस हो गया था, ऑपरेशनल रिस्क की वजह से भी लॉस हो गया था, तो टोटल ऑन एंड ऑन मेरा 1500 मिलियन का नुकसान हुआ था. तो उसी के प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं अभी भी अज्यूम कर सकती हूँ. ठीक है. Another significant challenge for risk managers is understanding how risk aggregation can be applied to measure all risk at the enterprise level. Risk aggregation सब risk को एक साथ consolidated way में देखना. To consider the potential for complexity, consider differences between quantifying the market risk associated with an individual stock versus a derivative transaction. Market risk for a stock can be modeled using past volatility and the notional amount at risk. आप पास के वॉलिटिलिटी स्टॉक में कितना रहता है, कितना चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो. However, derivatives can be considerably more complex. ठीक है. Their volatility can be significantly higher than that of an individual stock. Sometimes exposure to multiple derivative contracts can cancel each other out, which means that notional value would not even apply, although risk is still involved. अब अगर आप बहुत सारा डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हो तो एक से दूसरे में प्रॉफिट, दूसरे से तीसरे में लॉस, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना तुम लोगों की मेरा एक्चुअल रिस्क क्या है. ठीक है. Market participants have resorted to using Greeks, that is delta, gamma, theta and vega, to model uncertainty, but these values cannot be aggregated with other positions to the enterprise level. अब ग्रीक्स क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव्स ऑलवेज डिराइव अ वैल्यू फ्रॉम देयर अंडरलाइंग. अंडरलाइंग मतलब जैसे एक स्टॉक है एक कंपनी एबीसी का,
ठीक है, एक स्टॉक है कंपनी एबीसी का, उसका अगर मैं एक डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन ले रही हूँ, तो अगर ये स्टॉक 10 रुपए से बढ़ेगा ना, हो सकता है मेरा डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन 5 रुपए से बढ़े, ठीक है, तो इट इज मूविंग इन अ सिमिलर मैनर ना, राइट, तो इसको हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इन लोग ग्रीक्स बोले ना, ग्रीक्स आर सेंसिटिविटी ऑफ योर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू योर स्टॉक, ठीक है। तो अब इन लोग अगर थीटा बोल रहे हैं तो थीटा का टाइम होता है कि अगर से मे बी एक दिन का चेंज हुआ, 1 डे चेंज, तो मेरे डेरिवेटिव में कितना चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू माय स्टॉक, ठीक है। अब अगर मैं वेगा बोलूं तो अगर मेरा स्टॉक का वॉलेटिलिटी चेंज हो, स्टॉक का वॉलेटिलिटी भी हम लोग परसेंटेज में बोलते हैं, वीआर ये सब जो बोलते हैं ना, वैसी वॉलेटिलिटी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है रिटर्न्स का। तो रिटर्न्स अगर मेरा स्टॉक का रिटर्न्स मैं 1 साल का निकाली, 5, 10 करके 365 डेज का उसका एक एवरेज निकाली, तो माय एवरेज रिटर्न वाज 7%। वैसे ही उसका मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगी, तो स्टैंडर्ड डिविएशन से मे बी 5% है कि 5% वॉलेटिलिटी रहता है मेरे स्टॉक में। तो वो जो 5% है, अगर मेरा स्टॉक का वॉलेटिलिटी 5 से 7 हो रहा है, तो मेरे डेरिवेटिव में क्या चेंज हो रहा है, उसको वेगा बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सेंसिटिविटी क्या होता है? जस्ट गिविंग यू वेरी ब्रीफ आइडिया, क्योंकि आप ये सब डेरिवेटिव्स में पढ़ोगे। Yes, ma'am. So now let us answer the question. Enterprise level risk should be reduced to a single number. Example, value at risk for ease. Expected shortfall provides a more complete understanding of the potential magnitude of losses. Risk aggregation is more straightforward for derivative contracts. No. Individual stock contracts में ज़्यादा होता है. Measuring dispersion using the option Greeks can streamline the risk aggregation process. True. एक बार आंसर देख लेते हैं सारा। आपने इसका क्या आंसर बताया था? 2 का बी बोला था ना, 2 का ए होगा, बैंक्रप्सी एंड डिफॉल्ट रिस्क। नाउ व्हाई, लेट अस अंडरस्टैंड। The fact that the loan is secured by land and building is now worth less than the amount of the loan outstanding subjects LBI to increased bankruptcy risk in the sense that the liquidation value of the collateral is insufficient to recover the loan if the loan defaults. Bankruptcy risk क्यों हो गया ये? क्योंकि आपका जो कोलैटरल का वैल्यू है वो कम हो गया है, तो आप अगर लोन डिफॉल्ट हुआ तो क्या आपको पूरा वैल्यू मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, राइट। तो इसमें तो आपका नुकसान होगा, तो वो नुकसान को हम लोग बैंक्रप्सी रिस्क बोलेंगे। Second, the financial loss and the cash flow difficulties suggest that there is increased default risk for LBI as well, क्योंकि डिफॉल्ट भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो जो कंपनी जिसको आपने लोन दिया था उसमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रखा है। Downgrade risk does not apply because loan is not publicly traded and is unlikely to be rated by a recognized rating agency. Settlement risk does not apply because there is no exchange of cash flows at the end of the transaction that would be required to incur such risk. In this case, the loan is settled when